علامت مطلب کہ ان کی پہچان کے لیے 73 مسلم کی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی علامتیں بیان ہوئی ہیں؟ چلو پیچھے جا کے گننا شروع کر. وہ تو بھائی اتنی لمبی حدیث ہے تو وہ گنتے گنتے بھی کوئی آپ کو 15 منٹ لگنے ہیں. صاحب میرا ایک سوال ہے ان سے کہ حضرت نے کیا نا. زون بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات و وفات سے مرزا صاحب سے کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ اچھا ایک منٹ ان نون بھائی ایک منٹ ذرا تھوڑی سی بات کرنے دیں ان سے. جی زون بھائی وہ مسلم شریف آپ کہہ رہے تھے حدیث میں نے بڑی دفعہ قادیانیوں سے ڈسکس کی ہے تو اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی علامتیں ہیں؟ ان کی پہچان کے لیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ رک جائیں ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دیکھا جن کا نہیں رنگ اسی سرخ تھا 73 پہ رہیں اور اس میں بال معراج کا گنجرالے تھے، ذکر نہیں ہے. سینہ چوڑا تھا. اوہو نا 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 ہاں ایسے ابھی 73 پہ رہیے. مسلم شریف کی 73 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی علامتیں ہیں؟ بھائی یہ دیکھنا پڑے گا نا، وہ بہت بڑی حدیث ہے. اب اگر آپ ایگزیکٹ آپ پوچھ بہت رہے ہیں تو پھر وہ بڑی ہے. دیکھنی پڑے گی. اچھا چلے آپ نے چونکہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے تو تھوڑا بہت تو پتا ہوگا نا. پہلے اس حدیث کے اندر کس چیز دیکھیں کا ذکر ہے؟ مبشر بھائی، آپ کا میرا فرقہ ایک ہی ہے. ہم اس بات پہ بحث کرنے سے بہتر ہے کہ جو اس ٹائم مقدمہ ہے ہم اس پہ بات کر لیں. چلیں چھوڑے، میں بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا. میاں بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اب فرقہ سن ایک ہی لینا ہے. ہم سن لینا میں مائک میوٹ کریں ذرا تھوڑا سا سن لیں ذرا. آپ کے سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں تو سن لیں. مسلم شریف کی 73 حدیث میں دجال کے ابتدا میں دجال کا ذکر ہے. دجال کی 15 علامتوں کا ذکر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 علامتیں بیان کی ہیں دجال کی. اس کے فوری بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 43 علامتیں اللہ کے نبی نے بیان کی. 43 پہلے اگر نہیں آپ کو علم تھا تو ابھی آپ کو کم از کم یہ یاد رکھ لیں، کبھی کوئی بات ہو تو آپ بات کر سکیں. اگلی بات یہ ہے کہ ان حدیثوں کو اور ان قرآن کو تو وہ قادیانی مانتے ہی نہیں ہیں. مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ میرے منہ کی باتیں قرآن ہے. مرزا قادیانی کا بیٹا کلمۃ الفصل کے اندر کہتا ہے صفحہ 173 کے اوپر کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں. اب یہ دوبارہ قرآن مرزا قادیانی کذاب کے اوپر نازل ہوا ہے. اللہ نے اس کو محمد بنا کے بھیجا ہے دنیا میں، تو دوبارہ قرآن اس کے اوپر نازل کیا گیا. تو اس وجہ سے اور حدیثوں کے بارے میں مرزا قادیانی کہتا ہے حدیثوں کو میں ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتا ہوں. اور امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں، کیونکہ عیسیٰ اور امام مہدی ان کے نزدیک ایک ہی شخصیت ہے، تو اس حدیث میں چونکہ عیسیٰ کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام، تو ان لوگوں کے نزدیک وہ امام مہدی ہیں. تو وہ کہتا ہے امام مہدی کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب مخدوش ہیں، ناقابل قبول ہیں، ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گڑت ہیں، رتی برابر بھی ان کا کوئی یقین نہیں ہے. یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے بھائی. تو اس وجہ سے ہم قادیانیوں سے قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کو. جب مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کو پیش کرنے کا کوئی فائدہ بتائیے. اگلی بات میری آواز آ رہی ہے؟ سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں میرے. ہیلو جی آواز آ رہی ہے جی. اگلی بات یہ ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کی کردار کو پسے پشت ڈالنے کے لیے ان موضوعات کو سامنے لے کے آتی ہیں کہ یعنی مرزا قادیانی کا جو کردار ہے، یہ گھنونا کردار جو ہے نا، وہ پیچھے پردہ رہے اور لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اس سے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس موضوع کے اوپر گرفت نہیں ہے. میں کہتا ہوں ویسے تو آپ ہم سے بڑے مناظر ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ پاک کے حکم سے ہزاروں مناظرے اس موضوع پہ کیے ہوئے، اور مرزا مسرور تک میرے مناظرے ہوئے.
इनका जो सबसे बड़ा मिशनरी मुरब्बी है अंसर रजा के साथ मेरे कसीर मुनाजरे मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। इनके जमात का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है मुफ्ती मुबशर कालू रबवे वाला, उसके साथ मेरी डिबेट्स हुई हैं। तो ये बात नहीं है कि हमें इस मौजू पर कोई गिरफ्त नहीं या पता नहीं या कोई शुद्ध बुद्ध नहीं या कोई नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा कादियानियों के साथ ये मसला है कि भाई एक जानी और शराबी इंसान है, एक परले दर्जे का कुमाश इंसान है, तुम उसको पहले एक शरीफ इंसान तो साबित करो, फिर अगली बातें ईसा जिंदा है या मुर्दा है वो बाद में देखेंगे। जी अब समझ आइए कुछ जोन भाई। जी जी समझ आ गई है, बस मसला वही है कि इसके ज़हूर का वहाँ ही खात्मा हो जाता है। 73 में जब अल्लाह ताला ने दो मसीहा को एक ही फ्रेम में खड़ा कर दिया है, तो फिर ये किस तरीके से, ये ऐसा नहीं है कि ये सही बुखारी या मुस्लिम को मानते नहीं है, ये बिल्कुल हमारे जितना ईमान रखते हैं, लेकिन फिर भी ये काफर के काफर है। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੂਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਟਾ ਸਮਸ ਹੋਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤੇ ਚਲੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਟਾਰੀ ਆਪ ਖੋਲਨੇ ਲਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਵਾना ਪਏਗਾ। आ जाओ फिर कि कादियानी हदीसों को मानते हैं कि नहीं, कुरान को मानते हैं कि नहीं, ये लें मैं अब पटारी खोलने लगा। खोले ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸੂਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ इसीलिए मैं कह रहा था कि एक कादियानी को यहाँ पे ਤੁਸੀਂ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। चलो सुने अब रूहानी खज़ैन जिल्द 22 सफ़ा 87 है। मिर्जा कादियानी कहता है कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। बताएं वो हमारे कुरान को तो मान ही नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि कादियानी कुरान को मानते हैं। मुबशर भाई इसलिए मैं कह रहा था फ्रेम में एक कादियानी ले आए ताकि आप नहीं आप कह रहे थे कि कादियानी कुरान दी इसको मानते हैं। इसका जवाब दें। हाँ तो उनसे कोई भी आप मसला पूछ ले वो कुरान के मुताबिक जवाब देंगे ना। नहीं आप कह रहे थे कुरान को मानते हैं तो इसका आप ही जवाब देना। हमने तो कादियानियों से बात करके देख ली हुई है, तो दिफा तो आप कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा। इस एक इबारत को लेकर के आप क्या समझते हैं कि मिर्जा कादियानी कुरान को मानता था? बताएं। हेलो हमारा असल में हमारा इनके साथ इख्तलाफ ये है कि ये कुरान नहीं के भाई मुताबिक नहीं, मैंने ये और कोई बात नहीं कर रही। मुझे बताइए कि इस इबारत को देख करके क्या आप समझते हैं कि मिर्जा कादियानी कुरान को मानता था? हाँ बस हो गई ना, ना करिया करो इंज ड्रामे नहीं करीदे हुंदे, नहीं करीदे हुंदे ड्रामे। तुसीं सानू काका समझदे हो, ड्रामेबाजी किसी और जगह ते जाके करो जे। अच्छा मैं डिबेटर हाँ, मैं इंज बात है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਬੇਟਰ ਹਾਂ जी, मैं बड़े हजारदार बंदा बिंद है। नहीं मैंने आप बड़े ड्रामे ना किया करें, ने ड्रामे नहीं करते, बहुत छोटे हैं हम, बहुत छोटे हैं। छोटे नहीं है आप, पक्के सच्चे कादियानी नहीं है, पीछे पर्दा ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप। अच्छा मैं कादियानी हूँ? अच्छा और की हो, अभी तक बैठ के तो आप मिर्जे कादियानी तो का दिफा कर रहे हो। गुलाम अहमद कादियानी पे लानत डालो, वो तो वो वक्त आने के ऊपर हर कादियानी डाल देते हैं ना। चलो वक्त आने के ऊपर तो आप अपने प्यो के ऊपर भी लाना डाल दें। यार मुबशर यार ऐसे नहीं होता जैसे आप बता रहे हैं। वो ठीक हो गया, नहीं ऐसे दिफा नहीं किया करते। फिर कैसे करते हैं मुझे बता दें। जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ये कितने बड़े बड़े डिबेटर्स हैं, ये लड़के ये सारे, आपको पता भी है। अच्छा तो फिर ये इनमें से कोई उठ के जवाब दे देना फिर आप मुझे। उसको उठा रहे हैं, उसको नीचे उतार दे, उसको जिस फैसल की बात आप कर रहे थे वो आपको पता भी है वो क्या चीज के है, उसको नीचे तो उतार दो। बोला भी नहीं ना, भाग क्यों गया? तो वो जान दो भाई, जान दो, एवं मुंह चुके हैं। नहीं पूछ रहा हूँ ना, फिर बात क्या बड़ा। आज पहले दिन मियाँ मैं आपको इधर देख रहा हूँ और आप बैठ के उधर कादियानियों का दिफा कर रहे हैं। और भाई मैंने 1000 बार सोचा ना कि आज मैं ब्रॉडकास्ट में आऊं, क्योंकि 30 लोग तो टोटल आपको देख रहे हैं, मैं तो उसमें जाता हूँ जो 1000 लोग जिसमें देख रहे हो। अभी 1000 कर दूं, अभी 1000 कर दूं, एक मिनट मुफ्ती साहब, अभी 1000 कर दूं ये
भाई आप 1000 करें, अच्छा, अभी के अभी 1000 करें। मैं कसम अल्लाह की अभी के अभी 1000 करता हूँ, शर्त लगाओ यहाँ। अगर ये 1000 मैंने ना हाँ, की, 3000, अगर मैंने ये 3000 ना किए, मैं ये आज से बाद ये ड्राट लगाना छोड़ दूंगा। लगाओ शर्त। डन। चले भाई, ओके, ये डन। अल्लाह की शर्त के बंदे बगैर शुरू करें, करे मेरी करे बात सुने फिर। खान साहब करें ये आप। अभी फिर बेवकूफ मेरी बात है, सुने, इस फ्रेम में फिर और कादियानी ये लेके आया है, रिकॉर्डिंग हो रही है, जिसके साथ आप रिकॉर्डिंग अपना हो रही मुकदमा है, और ये रिकॉर्ड के ऊपर भी आ जाएगी कि ये कादियानी जो धोखा देते हैं कि हमारी बरादों के ऊपर 1000 बंदा बैठता है, उसको भी बेनकाब अभी हो जाएगा, अभी हो ये जाएगा। क्या बात हुई? रिकॉर्डिंग हो रही है। लगाते हैं, $5 लगते हैं, बूस्टर लग जाते हैं। अच्छी वही तो ना, बात कर रहे $5 हो। $10 लगाए तो वो मुफ्ती साहब जिधर मर्जी ले जाओ। मुझे 5-10 मिनट दे दे, मैं इधर ये अभी ट्रक खड़ा करता हूँ, मैं भी लगाता हूँ बूस्टर इसको। बिल्कुल बिल्कुल करें 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 करें, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगा। दंदियां कड्डो हुन चोरी फड़ी गई है ना। यार मैं, मेरी चोरी क्या पड़ी गई? मैं कह रहा हूँ, मैं आपके फिर एक यार आदमी, ओ भाई मैं जोन उस कादियानी पर लानत साहब, डाल रहा हूँ, वो जहन्नमी जोन है, साहब ना किया जो करें अहले यार, बैत ना में- की ना करें। अभी आज पहले दिन आपको देख रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर, हमारी एक एक रिकॉर्डिंग जाती है, अपलोड होती है, और ये भी अपलोड होगी। और वहां की अवाम, YouTube वाली अवाम अलग है, वो अलग अवाम है। अब वो आपको सुनेंगे ना, देखेंगे, वो कहेंगे पहले तो कदी असी अज तक इनू वेख्या को नहीं बंदे नू, अज ही मुंह चुक्या कित्थों आ गया जी। मैं 1000 बंदियां च बह के गल कर, आप पहले केड़े 1000 बंदे यार, पहले हैं, क्यों दिन- झूठ बोल रहे हैं? यार क्या बात है। झूठ गप्पा, कोई गप बंदा मारता है, कोई छोटी मोटी होती है, कोई समझ में भी आती है, एडी वड्डी के जी फड़ी ही ना जाए। अच्छा, आपको अभी तक ये ही नहीं पता चला कादियानी का हमारे साथ मसला क्या है? आप मसला डिबेट क्या? बने, मैंने डिबेटर तो बने, देखे, मैंने तो काम पहले कहा चल था रहा है। आप हमसे बड़े डिबेटर हैं। आपने शायद मेरी साहब का गुफ्तगू नहीं सुनी। मैंने तो आपको कहा है, और मैंने इनकार किया था, बल्कि मैंने कहा था, आपने नहीं, मैं जब तो पूछा था मानता कि ही नहीं हूं कि आपने मैं कभी, डिबेटर हूं। आपने कहा मैं था तो कि आपसे मैंने सवाल लेके आया, कादियानियों से मेरी आप कभी तरबियत मुनाजरा कर किया है, रहे तो हैं, मैंने कहा था मुबशर नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। आपने सुना नहीं था? चलो यार, कोई और बंदा बात करे यार। अभी बैठना ब्रो, वो बूस्टर लगाते हैं, मैं ट्रक खड़ा करने लगूं। जाना नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे लगता है। आपकी खातिर $30-40 अभी खराब करेंगे, लेकिन कोई नहीं, आपको यकीन आ जाएगा। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो यार रही नहीं, है, आप ना और ये लगाएं, हमेशा के लगाओ लिए ये। ये रिकॉर्ड के ऊपर आ जाएगी ये चीज कि ये तादाद कैसे बढ़ाती हैं। वो तरीके सारे हमें भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हाँ, ये कादियानी जो ड्रामे करते हैं ना लोगों को, वादा की ये सब हमें भी आते हैं। ज़हूर होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा उठाए गए और वापस आएंगे, और ये कादियानी, गुलाम अहमद कादियानी, ये काफिर है और सारा झूठ बोल के गया है, और जानी है, जो आप बोल रहे हैं शराबी है। मैं तो इस चीज पे ईमान लेके आ रहा हूँ, मुझे तो पता है ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो हदीस को रद्दी की टोकरी में फेंकने वाले ये वो हवाला सुन ले भाई। रूहानी खज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 140 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि और मेरे इस दावे की हदीस बुनियाद नहीं, बल्कि कुरान और वो वही है जो मेरे पर नाज़िल हुई। हाँ, तजदी तौर पर हम वो हदीसें भी पेश करते हैं जो कुरान शरीफ के मुताबिक हैं, और मेरी वही के मुआरिज नहीं, और दूसरी हदीसों को हम रद्दी की तरह फेंक देते हैं। वो तो मानते ही नहीं किसी चीज को, ना हदीस को ना कुरान को। तो कुरान हदीस से हम क्यों बात करें कादियानियों से कि जिस चीज का तल्लक वास्ते ही उनसे कोई नहीं है? हम क्यों बात करें भाई? और मिर्जा कादियानी का बेटा रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, जिसका दूसरा नाम कलमातुल फसल है, उसके 173 के ऊपर कहते हैं, हम कहते हैं कि कुरान कहाँ मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी? मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोधी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। देख लें,
जब आप कुरान पढ़ के सुनाएंगे उनको तो वो तो खुश होंगे कि ये वो वाला कुरान पढ़ के ये मौलवी हमें सुना रहा है कि जो मिर्ज़े कादियानी कज़्ज़ाब के ऊपर नाज़िल हुए, वो तो खुश होंगे ना। वो कलमा भी आपको पढ़ के सुनाएगा, कहेगा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि उनका कीता है कि मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी है। हवाला मैंने अभी आपको दे दिया। ये सारे लानती है ना, ये कादियानी लानती है, बगैरत जहन्नमी है। तो ये है कि कुरान दी से बात ना किया करें कादियानियों से, ये गुजारिश है आपसे। जी मैं इसको देखूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट इस मामले में इनसे बात ना हो। बस ये वो यही कहते हैं ना कि अब कल इसने एक सवाल रखा, मेरा मुंह बंद हो गया। इसने कहा कि पूरे कुरान में से बताओ कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया है। अब मैंने कहा कि यार अशारा नहीं, तक वो बताया बाद में देखेंगे। वो अल-निसा जब आयत मिर्ज़े नंबर कादियानी 159 को या 158। नहीं, अभी वो हाथ ही नहीं लगाना हमने। क्यों लगाए भाई, क्यों लगाए? उधर आपका मुंह बंद हो गया, आपने नहीं उसका मुंह बंद किया। ओ भाई बताना था ना उसको कि किया भाई ना 158 पहले और मिर्ज़े कादियानी वो को एक शरीफ इंसान साबित कर लो, एक शरीफ इंसान साबित, फिर कुरान की तरफ भी आते हैं, देखते हैं। वो खुद कहते हैं किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो कहता है मैं आदमजाद नहीं हूं, मैं इंसान का बच्चा नहीं हूं। तो आपने नहीं उसका मुंह बंद किया, आपने भी करना था ना उसका मुंह बंद। किया ना सूरत अल-निसा की आयत नंबर 159 नहीं आए थे, नहीं ना पेश करते, कादियानियों को आयते नहीं ना पेश करते, कादियानियों को आयते पेश नहीं ना करते। यही तो बता रहा हूं मैं आपको। आपने गलत किया ना, आपने ठीक नहीं किया। कादियानियों को क्यों हम कुरान पेश करें? वजह, कोई वजह भी तो बताएं ना। आप प्यारे भाई, ये क्या नाम है आपका? जोन भाई, आप ये मुफ्ती मुबशिर शाह साहब हैं, ये मुफ्ती हैं, ठीक है। और 25 साल से इनका एक चैनल है, ये डिबेट कर रहे हैं। खत्म नबूवत टाइम्स आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना। ये जितने भी ये नादिर शाह और ये तलत और ये मसरूर, ये माइंड रोस्टर, ये मुल्क बन के आते हैं, सामने आते भी नहीं हैं और हम इनको वॉइस से पहचानते हैं। ये सारा दजल करते हैं, ये सारा ये मेरा अभी इंशाल्लाह मैं आपको भी ये बूस्टर भी लगा के बताता हूँ। ये देखें अभी आप, ये सारा बूस्टर। बात ये है जोन भाई, बात ये इधर सुने जरा। बात ये है कि हो खत्म नबूवत का मुजाहिद और हो कादियानियों के साथ डिबेट करने वाला, और वो आजिज को ना जानता हो, ये बात ही झूठ है। समझ आई कि नहीं? मतलब आपकी बातें बता रही थी कि आपको कख भी पता ही नहीं है, बिल्कुल आप झूठ बोल रहे, आपकी बातें बता रही थी। ये अब ये लड़के जो बैठे हुए हैं, ये खान साहब है, ये नाइट राइडर हैं, ये दीगर लड़के इधर साहिल है या नीचे फैसल आया था, ये वो पुराने डिबेटर हैं, डिबेटें करते हैं, एक से एक कर रहे हैं। तो मतलब ये आप इनसे वाकिफ ही नहीं, आपको पता ही किसी का कोई नहीं कि कौन क्या है। और तो ये आपकी बातें बता रही थी कि आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। नहीं मुबशिर भाई, पता क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ। मुझे लोग पता है क्यों नहीं जानते ये डिबेट के मामले में। सबसे पहले मैंने दिफा किया ये चिश्ती रसूलुल्लाह का। अच्छा, असल हाँ, ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह है ना, असल गल है नहीं जी सामने। खान साहब, हाँ खान साहब, जी मैं वो ऐप के साथ बिजी हूँ। अच्छा, ये वो छोटे मिर्जा साहब का मैं क्या असल हूँ जी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे ये मुफ्ती साहब, आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे। होली है यार नहीं असल कब लग गया ये पता? अच्छा, छोटे मिर्जे का साहब भी है ये। अच्छा, अभी तो एक दो पेज खुलेंगे। नहीं वो भी नहीं, ए ने थर्ड पार्टी, इन्हों कहते ने इंज दे बंदियां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ थर्ड पार्टी। ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਪਹਿਲੇ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਹਾਣੀ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਥਰਡ ਪਾर्टी ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।
नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे भाई, कोई थर्ड पार्टी है। अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला हमें अल्लाह माफ करता है, ईमान तुसी नहीं ना माफ कर दे पे, अल्लाह दे माफ ही करता है। बस दजल झूठ फरेबकारी है दुनिया के अंदर जोन भाई, अल्लाह माफ करे। लेकिन मुल्हिदों को कहाँ पे अल्लाह ने माफ करना है? मुल्हिद जन्नम की तहों के अंदर गिरेंगे। ये तो है, ये तो है। नहीं, ये वैसे ना आप फैसला कर सकते ना हम कर सकते हैं मुबशिर भाई, अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है, रोज़े महशर फैसला होगा इस चीज़ का किस चीज का? कि कौन जहन्नमी और कौन जन्नती है, कौन सही रास्ते पे, कोई कौन मैंने गलत तो रास्ते पे। किसी का मैंने आपको जन्मी का है, मैंने कब आपका नाम तो नहीं लिया, किसी का नाम तो नहीं लिया। नहीं, किसी जनरली का भी बात हो ना, की वो है पता कि नहीं होना, अल्लाह की ज़ात जी? बैठी, अल्लाह की ज़ात बैठी, अल्लाह की जात को क्या हो गया? अल्लाह की ज़ात बैठी है ये फैसला करने के लिए कौन सही रास्ते पे कौन गलत रास्ते पे, ये तो रोज़े महशर पता चलेगा ना। कहीं अल्लाह की जात कहाँ पे बैठी है? हाँ, अल्लाह का अर्श है ना आसमानों पे, वो जब रोज़े महशर हम सब इकट्ठे किए जाएंगे तो तब फैसला होगा कि कौन। अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। अल्लाह का अर्श, मैंने कहा आसमानों पे, अल्लाह के अर्श पे अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ है। अल्लाह का अर्श, हाँ तो अर्श, अर्श पे ही है। क्या है अल्लाह अर्श पे? तो हम तो इस्लामी अकीदे दा नहीं पता ते तुसी डिबेट करनी है। अल्लाह माफ करे, तौबा। आप तरबियत कर देना मेरी फिर इस मामले में। ओ नहीं भाई मियाँ, ये इस्लामी कीदा है नहीं, आप अपनी बातों से ही मशकूक और बड़ी बड़ी के इस्लाम की कोई रत्ती बराबर शुद्ध बुद्ध नहीं है मेरे भाई को। बैठने उठने से अल्लाह पाक है, बैठती उठता मुजस्सम जो होता है वो बैठता उठता है, जिसका जिस्म होता है वो बैठता उठता है। गैर मुजस्सम जिसका जिस्म ही नहीं है, जो जिस्म से पाक है, वो बैठे उठेगा क्या भाई? हाँ तो अल्लाह का अर्श आसमानों पे, अल्लाह अर्श पे मौजूद है भाई, उसने इस्तवा ये किया अपनी शान के मुताबिक, बैठा तो अल्लाह नहीं अर्श है। पे मौजूद है। हाँ तो बैठा नहीं है, मैं रुजू करता मौजूद, हूँ। ये कह सकते हैं। वो भी मौजूद है। साथ हाँ, साथ रुजू ये लफ्ज करता हूँ। बोलते हैं, साथ ये लफ्ज बोलते जुबान- हैं कि अपनी शायाने शान वो अल्लाह पाक ने इस्तेवा फरमाया। बस इतना क्या है कि हाँ, हमने वो बात जुबान खत्म कर फिसल दी। गई थी, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, रुजू करता हूँ, उस लफ्ज से अल्लाह ताला नहीं मौजूद है रोजे में। ये जुबान देखिए, अब हाँ, अभी मेरे सामने फिसली है, यकीनी सी बात है। आप जब डिबेट करते होंगे वहां पर भी आपकी जुबानें फिसलती होंगी। भाई ये तो एक natural चीज है ना यार। डिबेटर की जुबान Natural फिसले, ओहो हो, वो ना काबिले कबूल है। नहीं ऐसे नहीं तो होता। डिबेटर ये होता ही वो है कि फिल्मी दिमाग हाजिर रख के, बातें- बिल्कुल दिमाग हाजिर रख के वो तोल के बोले, रत्ती बराबर भी, क्योंकि ये डिबेट होती ही मेरे भाई जुबान से है। तो यहाँ तो भाई आप लफ्जों को अपना पकड़ा फौजी जाता है मार रहे हैं ना। ना, आप अपना फौजी मार रहे हैं इसलिए जुबान फिसल रही है। जब कादियानी नहीं होंगे कोई बात इंशाल्लाह नहीं, मैं उनकी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो आपसे छोटे ही हैं ना, तो छोटे भी नहीं, कभी नहीं, हम कभी छोटे हैं भाई। उनकी भी मान लेनी चाहिए। आप नहीं, तो बड़े नहीं, डिबेटर हम हैं भाई छोटे मेरे। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। 1000 बंदों से कम डिबेट नहीं जाते उस्ताद जी, इनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। हाँ जी, जोन भाई, हाँ जी, जोन साहब, ये आए हैं एक हाँ जी, अहमदी, ये सुनिए। नीचे ये गंगोई नाम की आईडी वाले, इनसे बात करें जरा। अच्छा, हम ये भी थोड़ी सी डिबेट अहमदी है? जी अहमदी मैं है अहमदी ये। मुसलमान हूँ। जी मैं अहमदी मुसलमान हूँ। अहमदी मुसलमान है। बस जी। आप मुझे ना इनके सामने, मुबशर भाई के सामने अपना एक मुकदमा रख दें कि हमारा जब हो रहा होता है ना, डिबेट हो रही होती है, तो मेरा जब स्टार्ट में मैंने पूछा था या रिसर्च की थी, तो मुझे 2-3 अकीदे बहुत डिफरेंट नज़र आए थे अहमदिया और हमारे दरमियान जो है मुख्तलिफ है। नंबर 1 तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आप कहते हैं कि वफ़ात पा चुके हैं, वो जिस्म के साथ ज़िंदा नहीं उठाएंगे। तो आप मुझे बता दें कि ये आपका अकीदे के मुताबिक ये मैं बात सही कह रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है? हाँ सही है। और अब आप मुझे बताएं कि आप आप कुरान कौन है? और अपना हदीस भी को मानते कराएं हैं, ना। सही मुस्लिम और सही बुखारी को मानते हैं? आप कौन है? आप अपना तो तारुफ कराए ना, आप कौन है? हाँ, मैं मुसलमान आपका हूँ, ताल्लुक अहले किस सुन्नत चीज़ से? जमात से ताल्लुक है, अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक है। और बरेलवी अलियास कादरी साहब है जो फैजान मदीना वाले।
ان کو میں فالو کر رہا ہوں بڑے ٹائم سے. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا. تو ابھی جو یہ جو آپ نے عرش پر استوا والا یہ جو آپ نے عقیدہ بتایا یہ تو نہیں ہے وہ والا؟ کون سا؟ یہ ان کا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں میں نے رجوع کیا تھا نا, میری زبان پھسل گئی تھی. میں نے کہا وہ اللہ کا عرش آسمانوں پہ ہے اور اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہے. اچھا 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 اچھا. ہاں بس مجھے یہ بتا دیں, آپ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں؟ صحیح بخاری مسلم شریف پہ ایمان لاتے ہیں؟ جی جو مرزا صاحب نے کہا ہے اس کو مانتے ہیں ہم. نہیں, جو مرزا صاحب نے بولا ہے یا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو سب ہمارے 72 فرقوں کے مطابق جو ایک ہی کتاب ہے, یعنی یہ نہیں جس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ نہیں جو مرزا صاحب کہتے ہیں بس وہی. زون بھائی یعنی شاباش 73 زبردست. کا پھر آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زون بھائی یہ جو معذرت, میں آپ کی ذرا سپورٹ کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی. ان کو 72 فرقے بھی وہ بتائیے گا, ذرا نام بتائیے گا, جس بتائیے گا یہ احمدی صاحب. تو آپ کیوں اتنے فرقوں میں 72 میں پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کا کون سا نمبر ہے یہ بھی بتائیے گا. ان 72 میں آپ کا نمبر کون سا ہے؟ نہیں ہمارا کوئی نمبر نہیں, ہم مسلمان ہیں بھائی. میں نے یہ بولا کہ 72 فرقے ہوتے ہیں اسلام میں. مجھے تو اپنا پتا ہے اس میں سے آپ کا کون نمبر, آپ کا کون سا ہم نمبر ہے؟ جماعت ہے. نہیں ہمارا کوئی نمبر نہیں, ہم تو جماعت ہے, گروہ ہے. نہیں 72 کتنے 72 دیکھیں 72 ایک لاتعداد مطلب 72 لکھتے ہوئے بھی بندے کو 5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو 72 میں سے کوئی آپ دیکھیں, میں 10 کے نام گنوائیں. سوال تو آپ نہ 10 کے نام گنوا دیں, چلے 72 کو چھوڑیں. 72 کا ترجمہ بتا دیں بس مجھے آپ. نہیں یہ تو بتائیں 72 میں سے کسی 10 کے نام گنوائیں. یارا میں سوال کر رہا ہوں, صحیح مسلم 73 کا جواب بتا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مسیح کو ایک فریم میں کھڑا کیا ہے, اور جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے تو وہ دنیا میں واپس آئیں گے. آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں اٹھائے گے اور وفات پا چکے اور دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. نہیں وہی تو میں کہہ رہا ہوں, مجھے جب آپ کا پتہ چل جائے گا نا کہ آپ کا 72 میں سے کون سا نمبر ہے تو اس میرا نمبر ہی کوئی نہیں, گروہ ہے یار, ہم گروہ ہے نا. وہی میں کہہ رہا ہوں یہ 72 گروہ میں سے آپ کا گروہ کا نمبر کون سا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں آپ کے 72 گروہ ہیں, میں نے تو نہیں کہا. کدھر چلے گئے زونگ صاحب؟ آپ مرزا انجینئر والے گروہ میں تو نہیں ہے؟ وہ بھی اہل سنت پاک .com ہے. شاباش شاباش زون بھائی, بڑی زبردست ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ. واپس آئیے جلدی, ذرا احمدی صاحب کو پکڑ لیا آپ نے. آپ مجھے بس بتا دیں, یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے کیے ہوئے ترجمے کو مانیں جو آپ کے مطابق صحیح ہو؟ بالکل جو آپ کے مطابق یہ ہو صحیح. بالکل بالکل. تو وہ جو آپ کے نبی جی ہیں, جو آپ کے مطابق نبی ہیں, امام غلام احمد قادیانی, تو ان کی ذرا آپ نے ہسٹری پوچھی ہے, ذرا دیکھی ہے, سرچ کیا پوزیٹیو ہو کے یا نیوٹرل ہو کے, آپ نے کبھی پڑھا ان کے بارے میں؟ سنا, بڑے نیک انسان تھے. آپ نے پڑھی نہیں کتابیں؟ ہاں جی دیکھیں نا. نہیں اللہ معاف کرے ہمیں, مجھے اللہ تعالیٰ مجھے موت کی آخری ہچکی تک یہ نصیب نہ کرے کہ ان کی کتابیں مجھے پڑھنی پڑے, ایسی غلیظ کتابیں کہ جس میں وہ اہل بیت کو کر رہے ہوں, تہمتیں لگا رہے ہوں. اہل بیت کو تہمتیں لگا رہے ہیں؟ کون سا والا ہے؟ امام حسنین کو انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے پڑھی نہیں کتابیں؟ آپ بلا وجہ بغیر کسی حوالے کے بس بات کری جا رہے ہیں. اچھا آپ کا اہل سنت کے چلے مجھے 73 کا ترجمہ بتا دیں, آپ اپنے جماعت کے مطابق بتا دیں 73 کا مطلب کیا ہے, ترجمہ کیا ہے. زون صاحب ابھی تک آپ اپنا تعارف کرانے سے قاصر ہیں, کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیں. مجھے اللہ کا شکر ہے, مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں. پاک .com سے تعلق ہے وہ جو جیلم والی, وہ ہمارے مرزا صاحب جناب, وہ انہوں نے آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیے تو ہیں. وہ آپ کی جماعت سے مرزا انجینئر نہیں, وہ ہمیں سپورٹ تو کرتے ہیں نا. انہوں نے آپ کو کہاں سپورٹ کرتے ہیں؟ وہ تو کسی گنتی میں نہیں, آپ کو نہ 3 میں گن رہے ہیں نہ 13 میں گن رہے ہیں. آپ کو کیسے نہیں سر, آپ نے ان کو سنے نہیں. وہ ہمارے چینلوں کے اوپر ان کے بیانات موجود ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب قادیانیوں کا ترجمہ بھی صحیح ہے قرآن کا, اور مسلمانوں کا سب کا غلط ہے. نہیں, میری جان, اس نے یہ کہا کہ قادیانیوں نے اس لفظ کا مطلب صحیح, خاتم النبیین کا مطلب اور ترجمہ ٹھیک لکھا ہے, یعنی مہر لگانا نبیوں پر. آپ مانتے ہیں کہ ہم نے ٹھیک لکھا ہے؟
हाँ वो उस अरबी का जो तर्जमा है वो आपने ठीक किया है, मोहर लगाना। अच्छा लेकिन वो उसका मतलब अच्छा यही अच्छा, होगा उर्दू यानी जुबान में सारे कि मुसलमानों ने के गलत बाद किया है। कोई भी नबी नहीं आएगा। यानी 72 में से 71 फिरकों ने गलत की है। जेलम मतलब इंजीनियर साहब जो है हमारी तरफ सपोर्ट करते हैं, उनका जो बात है उसको आप तस्लीम करते हैं कि नहीं, मुसलमानों ने तर्जमा गलत अब तर्जमा जैसे किया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, जैसे एक होता है कि जी शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से हाँ शुरू हाँ करता हूँ, तो ये अलग अलग हो हाँ, गया, मतलब तो एक ही है ना इसका। नहीं नहीं, उसमें तो पूरा माना चेंज है ना जी, माना कि मोहर उसमें तो लगाना, पूरा क्या माना मोहर चेंज है। लगाने का मतलब होता है सील लगा दी, सील लगा दी, मोहर लगाने का सील। इसके बाद कोई वही नबी मैं कह रहा या हूँ ना, रसूल नहीं उन्होंने आएगा। देखें उन्होंने एक आयत को तो बाद में पढ़ा ना, उन्होंने पूरे कुरान की बात की है कि जो मुसलमानों ने आज तक ये 72 फिरकों ने जो तर्जमा किया है ना वो गलत है, और जो कादियानियों ने किया है यानी अहमदियों ने किया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आप अच्छा, इस बात आपने को जो तस्लीम तर्जमा करते किया हैं तो ना। आप उसमें भी आपने वो उसमें तो भी वो ईमान हमारे नहीं लेके आए ना। अगर आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं जैसे कि आपने कर भी लिया है, ठीक है, तो हमारी तो फतह यकीनी होगी आपके सामने। आप तो डिबेट हार चुके हैं फौरन, आपने इस बात नहीं, को मैं तो तस्लीम नहीं कर हार लिया कि चुका, मैं कह रहा हूँ हमारा तर्जमा सही बिल्कुल भी ठीक है, किया है, आपके सबसे तर्जमा गलत है। सही भी किया, तो आप उसमें ईमान भी तो नहीं ना लेके आए। ओ सर जी, ईमान वाली बात बाद में है ना, सबसे पहले आपने इस बात को तस्लीम कर लिया कि कादियानी का तर्जमा ठीक है, सारे मुसलमानों का गलत है, ये आपने तस्लीम कर लिया। भाई सूरत अल-निसा आयत नंबर 159 का क्या मतलब आप कहते हैं, आपकी जमात और ने क्या सर जी तर्जमा हम किया? जो भी कहते हैं मिर्जा साहब ने देखें आपको समझाया भी है, आपको समझ आ भी गई, अब आप तस्लीम करके फिर नहीं कर मैं रहे, वो मोहर लगाने वाली बात बात को को सिर्फ तोड़ना मान रहा दें। हूँ कि मोहर लगाने वाली बात हाँ आपने सिर्फ ठीक की है। मोहर लगाने वाली बात मुसलमानों ने गलत की है, कादियानियों ने बिल्कुल ठीक की है, ये कहना चाह रहे हैं आप जी। मैंने ये कब कहा? मैंने कहा कि मतलब दोनों का वही है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वही ना, उन्होंने गलत तर्जमा किया ना, अगर आप मिर्जा कहते हैं साहब कि ने आपकी जमात ने कुरान पाक का तर्जमा ठीक किया, तो सूरत अल-निसा आयत नंबर 159 का तर्जमा आप अपने मुंह उसके से बता बाद में दें। जाएंगे ना, उस मौजू पे बाद में जाएंगे, उस आयत मुबारका जिस पे पे अल्लाह बाद में ताला बात करते हैं। पहले जो एक स्पेसिफिक बात हो रही है, एक जुमले के ऊपर बात हो रही है कि मिर्जा साहब ने कहा है जनाब के तमाम मुसलमानों ने तर्जमा गलत किया है, कादियानियों ने बिल्कुल ठीक किया है जनाब 100%। तो ठीक है, इंजीनियर को मैं किसी खाते में नहीं साथ मान रहा ना, आप हमारे मैं तो तर्जमे उस को खातम सही कह भी नबीयीन का रहे हैं। मतलब बता रहा हूँ कि मोहर लगाना और आप सल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बात का तलफ्फुज अलग अलग है लेकिन मतलब एक ही है कि आप सल्लम के बाद क्या कोई मतलब? भी नबी नहीं आएगा। तो वही कह रहा हूँ ना, आप जो मर्जी तलफ्फुज लगा लें, जो मर्जी समझ लें, मुझे इतराज ही नहीं तलफ्फुज के ऊपर, आपको इतराज होगा, मुझे नहीं है। मुझे तो ये बताएं कि कादियानियों का तर्जमा ठीक है दूसरे मुसलमानों के मुकाबले में कुरान का? आपके नहीं, आप क्या कहते हैं ठीक है आपका तर्जमा? इंजीनियर साहब आपके माने हुए हैं, अहले सुन्नत के, आपके अहले सुन्नत के जो इंजीनियर साहब हैं वो माने हुए हैं, तस्लीम तो किया फिर उन्होंने। आप अगर चलो ठीक है, इंजीनियर अगर मान जाता है तो इसका मतलब आपने ठीक किया है, और अगर आपने ठीक किया तो हम फिर आप उसमें देखें ईमान जी, क्यों हर नहीं लेके बंदा आते? अपने आप को ठीक ही कहेगा ना। मजा तो तब है ना जब मुखालिफ कहे कि नहीं जी नहीं, बिल्कुल ठीक है जी कादियानी का तर्जमा। मेरा सर जी आपसे सवाल है कि अगर आपका तर्जुमा इसके अलावा ठीक है तो इंजीनियर फिर साहब आप मेरी बात सुनिए, चले हम फैसला करते हैं। आज सब लोगों ने सुन लिया इस बात को, सब आपने तस्लीम कर लिया है कि कादियानी का तर्जमा सही है, मुसलमानों का तर्जमा गलत है। दूसरी बात भाई ये खातमुन नबीयीन ये का भी कहा मतलब मैंने कहा कि इसके तर्जमे अलग अलग हैं, मतलब तो एक ही भाई है। सुन लिया सब ने, भाई अब आप मेरे क्यों पानी में मदानी मार रहे हैं? आप 1000 बंदों के सामने चले मेरे आगे आएंगे, यहाँ आगे पे भी आगे आप मासा फील नहीं करेंगे, यहाँ पे 40 बंदों में फील नहीं कर रहे। आगे बोले आगे। आगे ये है कि देखें इंजीनियर साहब ने ये भी कहा है कि कादियानियों के जाए वजू भी चमक रहे होंगे, उन्होंने हमें मुसलमान तस्लीम कर लिया है, आपको क्या परेशानी है, आप भी तस्लीम कर लें। हाँ तो आप मानेंगे ना जब आप ईसा अलैहि इस्लाम को माने कि वो जिंदा उठाए गए और वापस वो आएंगे दज्जाल के खात्मे के लिए, आप इस बात में ईमान लेके आए? तो इसका मुसलमान होने से क्या ताल्लुक है? इस बात से आप हमें मुसलमान मान लेंगे? चले ठीक है, इस बात को खत्म कर दे। आप कहें कि गुलाम अहमद कादियानी वो नहीं है, इमाम मेहंदी नहीं है। देखें आप फिर मौजू बदल रहे हैं, 3 मौजू 4 मौजू मैं के एक ऊपर मौजू पे देखिए, रख के आपको आपका बात और करता हमारे हूं। फर्क आपके और आप हमारे डिबेटर हैं दरमियान जो मुसलमानों अकीदा की है जानिब वो से, ये आप दो तीन डिबेटर बने चीजें तो हुए हैं हैं। और आपको यही नहीं, आपको सूले मुनाजरा ही नहीं पता, आप डिबेटर बने हुए, एक मौजू अभी खत्म नहीं आप होता। कह रहे हैं ना दूसरे कि पे आप हमें, भाई आप कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं हम आपको मानते, तो तीन हमारा आपके साथ इख्तलाफ है, वो आप सही करें, अभी हम आप मुसलमान कहते हैं। ओ भाई इख्तलाफ तो ये है कि आप हमें बस मुसलमान तस्लीम कर लें, छोड़ें बातें बाकी सारी। वो देखें वो भाई, इंजीनियर साहब मेरी कह रहे बात हैं सुनिए। जाए वजू, मेरी बात सुनिए, ये कोई छोटी बात है? वो कह रहे हैं कि कादियानियों के जाए वजू चमक क्या? रहे होंगे।
अहले सुन्नत वाले पाक.com वाले। तो उसने तो इंजीनियर ने ये भी कहा कि ये कादियानी गुलाम अहमद कादियानी ये ठीक नहीं किया इसने, यानी इसने तालीम ठीक नहीं दी, कौन सी तालीम नहीं दी उसने? झूठ मुझे बोला है। दे दी आप तालीम। झूठ बोले, किताबों में झूठ बोले? ये कौन सा इससे झूठ बड़ी बोला? तालीम, एक इससे झूठ बड़ी बताया। तालीम एक झूठ उसने बताया आप। नबूवत का दावा किया ना। इंजीनियर साहब कहते हैं कि किसी सही सनद से साबित ही नहीं है कि मिर्जा क्या? साहब ने नबूवत का दावा किया हो। इंजीनियर साहब कहते हैं। भाई पहला झूठ ही ये है कि नबूवत उसने, वो इमाम मेहदी कहाँ से हो गया? इमाम और मेहदी का भाई ज़हूर तो इंजीनियर होगा साहब मक्का कहते से। हैं कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि मिर्जा कादियानी से नबूवत का दावा साबित ही नहीं है सही सनद से। सर जी आपको पता ही नहीं है, हमारे ज़ाय वजू चमक रहे होंगे, वो नहीं आपको पता? नहीं, वो तो इंजीनियर को मान कौन रहा है? इंजीनियर को किसी खाते में हम गिनते नहीं है भैया। लियाज कादरी साहब भाई अहले सुन्नत आपने खुद ही कहा है, अहले सुन्नत पाक.com। इतनी देर से आप नहीं, दिखा कर ही जा रहे हैं पिछले। अहले सुन्नत में हाँ, आगे बरेल भी है ना, अहले सुन्नत बरेल भी है। अस्तगफिरुल्लाह, ये देख लें जी, आधे घंटे से एक बंदा अहले सुन्नत पाक.com का दिफा कर रहा था, अब अपना जनाब वो आप सूरत से अपना नंबर अल-निसा क्यों नहीं बता आयत रहे? नंबर 159 का तर्जुमा बता दे, मैं आपको अभी के अभी मुसलमान समझ लेता हूँ। इसका तर्जुमा सही कर दो बस। अच्छा, अगर मैं सही तर्जमा कर दूंगा तो फिर आप मुझे मुसलमान समझ लेंगे? हाँ, जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक करना है, फिर उस चीज जो में ईमान भी लेके आएंगे, जो क्योंकि आप आप जो तर्जमा बोलेंगे फिर सही उसमें ईमान भी लाना होगा मेरी ना। बात सुने, चलें जी अभी फैसला हो जाएगा। आज जो आप हाँ। तर्जमा सही समझते हैं ना वो मेरे सामने लगा दे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप फिर मुझे मुसलमान तस्लीम कर लें। यार ठीक हो ऐसे गया? थोड़ी होगा, ये इतने ईमान बंदों के लेके अंदर आना आपने पड़ेगा ना बात उस की पे। है, इतने ईमान बंदों के लेके अंदर आना आपने ये पड़ेगा बात यार की है। उस हाँ जी, ईमान लेके आना पड़ेगा। ना आप दूसरी शर्त लगा दी आपने। मैं- आपकी जुबान है जो आपकी जुबान के नीचे एक और जुबान है। जोन भाई आप ऐसा करें। और सर जी, आप शीशा देखें। और सर जी आप शीशा देखें, को बताएं वो ईमान ले आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये मुझे मुसलमान चले तस्लीम पढ़ के कर लें। सुनाए। अच्छा जून भाई जरा लगाएं इधर, आप पर्चे में पढ़ लगाएंगे देता तो वो पढ़ेंगे ना, किधर से पढ़े अपने, वो किधर से पढ़े वो, आप लगाएं तो पढ़े ना। इनको अननोन भाई बड़ी स्क्रीन पे करें, ये लगाएं। जून भाई से ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि जून भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इतने बंदों को मार दे दी, वहाँ पे 1000-2000 बंदा देख रहे होते हैं। भाई हमें तो आपकी कायद का खतरा लग रहा है। ये वैसे मेरे साथ भाई 159 का आपने 58 जुबानों में तर्जुमा किया है ना। ये कौन सा ऐसा इस्लाम है जो जमात अहमदिया को समझ आ गया, जो पूरे अरब को समझ नहीं आया, और ये 2.25 अरब मुसलमानों को समझ नहीं आया? ये बता दे, आप ये टोटल 20-25 करोड़ जो आपके अहमदिया भाई हैं, ये इनको कौन सा इस्लाम समझ आ गया जो इमाम काबा को समझ नहीं आया? मेरे अहमदी भाई हैं, मुझे ये बताएं कि आपका क्या अकीदा खत्म नबूवत के बारे में? हाँ, आपसे सल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा, मेरा ये हज़रत अकीदा। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करने आ रहे हैं? हाँ, तो वो वफात तो नहीं ना पाए थे, तो भाई आप उनका नबूवत आपसे सल्लम से पहले हो चुकी है। बताएं, आप मेरे सवाल का जवाब देना, मेरे सवाल के ऊपर सवाल ना करें ना। चलो पूछे। हाँ, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या करने आ रहे हैं फिर? हाँ, वो मेरी बात सुने, आपसे सल्लम पहले आए हैं दुनिया में या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहले आए? बस भाई बताइए आप मुझे मेरे सवाल का जवाब देना। भाई जी, यही जवाब है, यही जवाब है। हज़रत ईसा आए हैं पहले, ठीक हो गया। हजरत ईसा आए हैं, ठीक। हाँ जी। हजरत ईसा ने पहले नबूवत का दावा किया या आपसे सल्लम ने किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में नबी या रसूल नबूवत क्यों करता है? अपनी कौम की तरबियत के लिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले नबूवत का दावा कर चुके हुए हैं, ठीक तो है, अब वो ठीक कौन है। से तो नबूवत का हज़रत दावा ईसा करेंगे? अलैहिस्सलाम आएंगे, नबी होंगे नहीं होंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे, लेकिन उम्मती हाँ, तो नबी बस, होंगे, बात खत्म, ऑलरेडी बस। नबूवत का दावा बस कर खत्म चुके होगी, होंगे। खत्म होगी बात, बस ये मैंने हाँ, खेलना हज़रत- था आपसे। हाँ, बस ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले नबूवत का दावा कर चुके हैं। एक नबी बार बार मेरी बात सुने एक्सप्लोर साहब, मैं मुसलमान हूँ, मैं यहाँ पे 2 सवाल जी, आपको जी। ऐसे पूछूँ ना, अगला भी सवाल मैं ऐसा पूछूँ ना, आप जवाब नहीं देंगे तो प्यारे भाई, ये भाई बड़ी जी। से बात करे तो नीचे गए हैं कि थोड़ा सा ना जो आपने बात की ना, हम समझ गए थे कि थोड़ा नो डाउट आपके पास नॉलेज होगा, हमसे ज्यादा होगा, लेकिन आप नहीं, knowledge नहीं है, आप ना देखें, मेरी बात सुने, कई इनकी चीजें ऐसी होती हैं कि आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा घुमाते हैं ना कि आपको समझ नहीं लगती, फिर जो नीचे बैठे होते हैं ना, वो फिर उल्टा नुकसान ही होता है। भाई आपका किस जमात से ताल्लुक है? मैं भाई जिस मर्जी से जमात से उसको छोड़े आप, तो आप कोशिश किया करें कि पहले नहीं, बस ये बता दे, अहमदिया से तो नहीं है भाई? मैं भाई जहाँ मर्जी से हूँ, अहमदिया से होना क्या बस कोई? हाँ भाई, अहमद क्या क्यों नहीं? एक नबूवत का दावा भाई छोड़। लड़खड़ा रही है ना, मेरा भाई बात सुने, प्यारे भाई बात सुने, जब हाँ, आप बताइए। नहीं डिबेट करें इनसे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नॉलेज लेके जाएं कि वो उनको ऐसा पकड़े ना आपके नीचे सुनने वालों को फायदा हो,
भाई ना उनको वो जवाब ही नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं सूरत अल निसा, आप कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन सूरत अल निसा 159 में अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मरने से पहले तमाम अहले किताब उन पे ईमान ले आएंगे। आपने तो आज वो मुझे आयत बताएंगे लगाया, पौने आप आयत लगाए, मैं उस आयत पे आपको- 8 अरब अवाम में से कौन लेके आए ईमान उन पे? भाई बहुत आप से लोग ऐसा हैं। करें, आप ऐसा करें, वो आयत लगाएं यार। वो गंगू भाई किधर है? वो उन भाई को बोल रहे हैं जिन्होंने जी, मैं अठारह कुछ ज़मानों में अर्ज अपना कर वो दूं? किया हुआ तर्जुमा किया हुआ। मैं लेता हूँ 2 मिनट हमजा भाई, उनको ऊपर लेने मैं दें। कुछ अर्ज कर दूं? मैं नीचे जाता हूँ, आप ले आओ। वो चले गए हैं। नहीं वो नीचे ही बैठे हैं। जी आमना बाजी, अस्सलाम वालेकुम। आप कुछ कहना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं तो उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए थे, तो मैं इस वजह से उनसे कुछ पूछना था। मैं कब की कह रही थी कॉल, कोई कॉल ही नहीं था डाल रहा। वो असल में होस्ट आपकी प्राइवेट आईडी है ना, हम अब वो होस्ट ही उठा सकते हैं आपको, तो वो ज़रा ड्राइव करें, वो बिजी है, आपको हम नहीं हमजा उठा भाई मैं सकते। आपको थोड़ा सा उतारने लगा हूँ, वो मैंने इमरान भाई को लेना है। हाँ जी जी अच्छा जी। अच्छा। हम जी गंगू भाई आप तो- कंटिन्यू करें। गंगोई भाई खान भाई मेरी बात सुने। खान भाई, जी 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 भाई। जब भी उस्ताद मोहतरम तशरीफ लाए ना, तो मुझे जब मैं कॉल कर बोलूँ तो आप मुझे कॉल पे ले लीजिएगा। ठीक हो गया भाई। मैं असल में इधर वो बिजी होता हूँ, क्या नाम है, ड्राइविंग में। मेरा जी, अक्सर जी, ध्यान नहीं होता। जरूर। अमन भाई को कह दें। मुझे कॉल डालने का नहीं पता, बाजी, मैंने बस आपको आप उठा ही लेना था, डालते हैं तो लेकिन मैं आप- आ जाती हूँ। आपकी आईडी प्राइवेट, चले मैं कह दूंगा नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह। ठीक जी है जी, जज़ाकल्लाह। जी वो असल में कुछ सवाल थे मेरे, तो इस वजह से। चलें इंशाल्लाह वो आ जाएंगे तो हम जी इंशाल्लाह ठीक हो गया भाई। ठीक हो जज़ाकल्लाह। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक। जी गंगोई भाई माजरत मैंने आपको इंटरप्ट किया, आप कंटिन्यू करें। वो भाई थोड़ा इनको गंगोई भाई आप इधर ही हैं? जी मैं मौजूद हूँ। जी भाई कंटिन्यू करें आप दोनों कन्वर्सेशन। 9 ना भाई आयत लगा दें आप, वो जिस आयत की बात करें सूरह निसा 159। देखें जी, बात यह है कि इन्होंने तस्लीम कर लिया है आप सबके सामने कि जो कादियानियों का तर्जमा है वो बिल्कुल ठीक है और मुसलमानों का गलत है। ये इन्होंने तस्लीम कर लिया है। तो अब ये मुझसे क्या निकलवाना चाहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा भाई आप आयत नहीं लगा रहे, मैं लगा दूं? नहीं रहने दें, आप क्यों लगाएंगे? मैनेज नहीं होगा, मैं पीछे जा गया तो आवाज बंद हो जाएगी। नहीं आप चलें आयत आप लगा ऐसा दें। करें ना, आपकी मेरी शर्त क्या तय हुई है, पहले ये एक दफ़ा रिपीट कर दें आप सबके सामने। आप करें ना, मुझे तो नहीं पता कोई हमारी अल्लाह माफिर ऐसी शर्त तो नहीं हुई कि दोनों में से कोई एक काफिर होगा नतीजे में। हम दोनों ही यानी आप मुसलमान मुझे हैं। काफिर, आप कादियानी को काफिर नहीं समझते? भाई अकीदा ठीक हो गए तो काफिर नहीं होंगे इंशाल्लाह आप। आपके अगर अकीदे गलत नहीं होंगे ना तो फिर आप काफिर नहीं अकीदा हैं। किसको अकीदे कहते हैं? ठीक है तो फिर इंशाल्लाह दोनों जन्नत। अकीदा किसको कहते हैं? जो आप लेके बैठे अकीदा ये है जो अकीदा आप लेके क्या होता है बैठे हो, जो बताइए। चले मैं आपकी लेता हूँ तलीम आज। भाई पहले वो एक आयत का एक बार कर लें, उसके बाद इस टॉपिक पे भी आ जाएंगे। आप टॉपिक क्यों छेड़ते बार बार घुमाते हैं, मुझे ये बताएं। मैं तब का इंतजार कर रहा तो हूँ सर इस जी चीज़ जिधर आप मुझे चलाते हैं मैं उस साइड पे चल पड़ता हूँ, फिर भी आपको गिला है। आप 1000 बंदों में क्या करेंगे? का। आपने कहा है कि नतीजा क्या निकलेगा, नतीजे में यही होगा ना, दोनों में से कोई एक काफिर होगा। तो हम ऐसा क्यों करेंगे कि फैसला करने वाले हम थोड़ी हैं, हम तो सिर्फ यानी अपनी आप एक सलाह कादियानी करने को आए हैं मुसलमान भाई। समझते हैं ना, बात खत्म होगी। आप हमें मुसलमान समझते हैं ना कादियानियों को? आयत आप पढ़ेंगे या नहीं, बस ये बताइए। मैं तो पता नहीं कितनी देर से कह रहा हूँ लगा दे इधर, फिर आपने मुझे अकीदा भी समझाना है। अच्छा चले ठीक है। हाँ ये मुझे बताइएगा सही अकीदा होता क्या है, बताएं जरा। सही अकीदा किसे हदीस कहते हैं? 35 इसका जरा मुझे ना आप जिस मुस्लिम जुबान से तर्जमा करके बता दें। मैं किसका? इस बात में मानूं। किसका किसका सर जी? भाई इन्हों हिलाओ यार चिमटे नाल।
और भैन हलाया नहीं है हलाया मेरे भाई पास। नेटवर्क का थोड़ा इशू है मैं जरा है इधर मोटरवे थे तो थोड़ा एरिया मोटरवे पे हैं आप? सिग्नल ड्रॉप हो गए थे मोटरवे पे जा रहे हैं आप? पाकिस्तान में मोटरवे होते पे हूं हैं? मैं इसलिए पाकिस्तान में कहाँ पे? जेलम में? जेलम में ये कहाँ पे होते हैं आप? की मुझे ज़ियारत करने जा रहे हैं भाई, कोई देखें जी, बात यह है कि इन्होंने ये भी जेलम तस्लीम कर उन्होंने लिया, इन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया कि कादियानियों का तर्जमा कुरान ठीक है, मुसलमानों का गलत है। नंबर 2, इन्होंने ये भी तस्लीम कर लिया नहीं अच्छा कि ये कादियानियों को मुसलमान भी कादियानियों का समझते हैं। तर्जमा ठीक है बिल्कुल हाँ जी, भाई कादियानियों का तर्जमा ठीक है किसी भी फिरके का तर्जमा गलत नहीं है तर्जमा गलत हो ही नहीं सकता यार इंजीनियर साहब कहते हैं, आपके आले सुन्नत वाले कहते हैं। भाई मैं अब आपने आप तस्लीम मेरी भी बात कर है ना लिया। तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि आपने अपनी बात को कादियानियों भी का तर्जमा तस्लीम कर ठीक लिया, इंजीनियर साहब की बात तो पीछे रह गई है, आपने खुद तस्लीम कर लिया। है। हाँ मैं अभी भी कर रहा हूँ तर्जमा गलत हो ही नहीं सकता यार सही बात। अस्तगफिर। कादियानियों का तर्जमा ठीक है ना? गंगोई भाई 2 मिनट, मैं 1 मिनट लूँगा। भाई मुझे एक बात बताएं जोन भाई, क्या जी बोले भाई ये जो सूरह निसा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत दी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, आपको पता है वो इसमें अहमद से अहमद का मिस्ताक किसको लेते हैं? किसको लेते हैं आपको नहीं पता? जब से ये मेरे साथ कर रहा है कि मुझे घुमा रहा है बातों को तब आप क्यों नहीं है मुझे तो हर चीज का पता है मैं मैं इसको लेके आ रहा हूँ सही बुखारी 35 हदीस पे लेके आ रहा हूँ कि बस इसका तर्जुमा बता दो ये इससे इसका तर्जुमा भी नहीं आपको पता है कि भाई कुरान के अंदर तारीफ करने वाला जिंदीक होता है। तो आपको ये बात 10 मिनट पहले क्यों नहीं समझ आई डिबेटर साहब, बात यह है कि जो मैंने आपसे तस्लीम करवाना था वो आप कर चुके हैं, रिकॉर्ड हो गई है आप बात। मुझे बता दें 35 का मतलब बता दें भाई आपने खातम नबीयीन का मतलब आपने क्या निकाला है तर्जुमे का हमने जो भी निकाला आपने तस्लीम कर लिया, ठीक है, बात खत्म हो। हाँ तो भाई वो उसका मतलब ही ये बनता है जो आपने निकाला है जो हमने निकाला जो है, मर्जी उसका भी मतलब यही निकालें, बनता है। जो मतलब, मर्जी आपका हाँ। दिल करे सर, आप 10 मतलब निकाल लें, मुझे इस चीज से गर्दी नहीं। आपने कादियानी को मुसलमान तस्लीम कर लिया, उनका तर्जमा ठीक मान लिया, मुसलमानों का गलत मान लिया। मुसलमान किसने कहा है भाई मुसलमान किसने कहा है क्या 35 का मतलब 35 अपने मुंह से बस बोलने सही बुखारी मैं मुसलमान समझ लेता हूँ 35 बोल दिया। वो हदीस बोल रहा हूँ हदीस हाँ तो बोलते दिया, आपने कहा 35 बोल दे, मैंने बोल दिया 35। और बस यही ना कि आपको फिर जवाब नहीं आता जब कोई जवाब दे तो रहा हूँ, जो आप नहीं। कह रहे हैं मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ आपको। भाई सही यार क्या बुखारी बंदे हैं आप? हदीस नंबर 3535 अपने मुंह से तर्जमा करें आपकी जमात ने जो तर्जमा किया वो तर्जमा बता दें बस पहले आप कुरान पाक की कुरान पाक पे बात कर रहे थे, अब आप हदीस पे चले गए हैं। आप कहीं एक जगह टिकते ही नहीं है, क्यों आप 1000 बंदों में जलील हो रहे हैं और फील भी नहीं कर रहे आप? आपसे होना ही नहीं है तर्जमा भाई क़यामत तक आपसे तर्जमा इसका होना ही नहीं है। अगर तर्जमा हो गया तो सर मैंने कहा लगाएं इधर, आपको 1.5 घंटे से कह रहा हूँ, ये आप अपने इतने बंदों के अंदर मैं 1.5 घंटे से कह रहा हूँ मुझे तर्जमा लगाएं। जो तर्जमा लिखा आपको तस्लीम है ना वो सामने लगा दें, मैं पढ़ दूंगा। लेकिन उसके बगैर ही आपने कादियानी को मुसलमान तस्लीम कर लिया है, तो फिर अब तो लगाने का भी फायदा नहीं है। तर्जमा मैं पढ़ देता हूँ, मैं तर्जमा पढ़ देता हूँ। आप पढ़े, मैं पीछे पीछे पढ़ देता हूँ। तर्जमा पढ़ देता हूँ। हाँ ठीक है 3535 में पढ़ने लगा हूँ, 3535 में पढ़ने लगा हूँ जी। सुनिए जरा, मैं जरा गाड़ी साइड पे लगा लूँ। हाँ बस ये चीजें बाजी आप करते रहे ताकि मेरा भी दिल लगा रहे, बस ये चीजें आप करते रहे ताकि ना, ताकि मोटरवे पे टाइम गुजर जाए। हाँ ठीक है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मसाल और मुझसे पहले अंबिया की मसाल इस शख्स जैसी है। मेरी मिसाल और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस शख्स जैसी है। इस शख्स जैसी है, इस शख्स जैसी। इस शख्स या उस शख्स? पहले आपने उस शख्स कहा है। इस शख्स जैसी। सारे ये अच्छा, इस शख्स जैसी, किस शख्स जैसी? पढ़े जी हाँ, पढ़ लिया जी, पढ़ लिया। जिसने एक मकान बनाया और इससे बहुत खूबसूरत तैयार किया। अच्छा जी, जिसने एक मकान बनाया और बहुत खूबसूरत तैयार किया जी। भाई पढ़े, आवाज आ रही है आपको? सर मैंने पढ़ तो दिया है,
आप बोले भी हैं, आपके ठीक पीछे है, मैंने ठीक धरा भी दिया मगर जी। एक कोने में ईंट की जगह खाली छोड़ दी, मगर एक कोने में ईंट की जगह खाली छोड़ दी, पढ़े जरा। मगर एक कोने में ईंट की जगह खाली छोड़ दी। हाँ, जी। अब लोग आकर इसके इर्द गिर्द घूमते हैं अब लोग आकर इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और इसे देख के खुश होते हैं, और इसे देखकर खुश होते हैं। अब कादियानी मुसलमान हो गए। और ये भी नहीं सुने, अभी ये थोड़ी सी रहेगी, 2-3 अच्छा, अभी लाइनें हो थोड़ी सी रहेगी रहेगी। जिसपे जी मैं हाँ जी, ब्रैकेट नहीं लगानी आपने, और ये सही से भी करना कहते पड़ना। हैं, मैं आप पे यकीन हाँ, कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपने सही सामने है भी नहीं लगाया हुआ, आपने भाई, सामने भी नहीं इंशाल्लाह लगाया रोजे हुआ, महशर डिटेल ना कीजिएगा। भाई, मौत के टाइम मुझे कलमा नसीब ना होगा अगर मैंने एक लफ्ज भी आगे पीछे किया, इंशाल्लाह। ब्रैकेट नहीं लगानी कोई, पढ़नी भी नहीं है। अच्छा सुने, सुनाए। हाँ सुने। और ये भी कहते हैं कि एक ईंट क्यों नहीं रखी। वो ये भी कहते हैं एक ईंट क्यों नहीं लगी। हाँ, रखी हाँ, रखी गई, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी गई, फरमाया ठीक कि है। मैं वही ईंट हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं वही ईंट हूँ और मैं खातमे नबीयीन हूँ। और मैं खातमे नबीयीन हूँ। खातमे नबीयीन लिखा हुआ है, ये क्या लफ्ज़ और होता अब है? मैंने मेरी पहली बात दफा सुन ले कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, गुलाम अहमद कादियानी ते शै ही कोई नहीं। हाय ये क्या बात है? ये हदीस में लिखा हुआ है? ये हदीस में लिखा मैंने हुआ है? बात खत्म कर दी, ये अपने से वो बात मैंने कर दी, मैंने कहा खत्म अब हो गया। अब कादियानी अब इसके मुसलमान बाद हो गए ये मैंने अपना मौकफ रखा कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, गुलाम अहमद कादियानी ते शै कोई नहीं। अब सल्लल्लाहु ने 35 हदीस में बता दिया कि एक ईंट बाकी थी, कि उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, वो ईंट में ही थी। ठीक हो गया। इसका मतलब अच्छा। 2 ईंटें नहीं इसको हैं। क्या लग रहा है हाँ। कि अल्लाह माफी दे हम कादियानी है इसको? नहीं, इससे कादियानी लग रहा है? इसको बस ये है कि मैं 1000 बंदों में विन हो गया हूँ। दे दो इन्हों कप दे दो, कप लेना है आपने? दे दो कप, हाथ च बढ़ा दो। नहीं, मुझे ये नहीं, बताया साथी मैंने मुल्लबीन, आपने वर्ड भी गलत बोला और आप ये क्या किया आपने? मुझे तो इस 35 से 20 से कुछ समझ नहीं आई। हाँ, उसमें अब देखें, जब ईमान ही नहीं होगा फिर समझ कैसी आएगी, जब आपने यकीन ही नहीं अल्लाह करना। अकबर, अस्तगफुरुल्लाह। हमारा तो ईमान है इस पे, ये क्या हाँ, बात यकीन कर करें रहे हैं ना। आप? तो यकीन, हमारा तो एक यकीन ईंट आप बाकी यही थी, कह रहे हैं कि आपने साबित क्या किया इससे आप? एक, और यही साबित किया कि गुलाम अहमद कादियानी नबी नहीं है, अगर होता तो आपने बहुत बोल दिया, आपने बहुत बोल दिया। मुझे टाइम दें, अब मुझे टाइम दें। तो आपने यार ये इसको बोला अपना था, लोधी भाई, इसको ये बताएं, हम मिर्जा कादियानी पे हम तो लानत बेचते, हम उसको कब कह उस्ताद जी रहे हैं एक वो नबी है? मिनट, उस्ताद जी एक मिनट। अल्लाह आप ये कह रहे थे कि ये हदीस मुबारका आप मेरे पीछे वर्ड टू वर्ड पढ़ दें तो आप कादियानियों को मुसलमान तस्लीम कर लेंगे। अब आप कादियानियों को मुसलमान तस्लीम करते हैं कि नहीं करते? जी जोंग साहब, आपने ये भी तस्लीम किया पूरी ब्रॉड के अंदर कि मुसलमानों का सबका तर्जमा गलत है, कादियानियों का बिल्कुल ठीक है। फिर आपने ये भी तस्लीम किया कि कादियानियों के ज़ाय वज़ू भी चमकेंगे, नौज़ बिल्ला हैं। फिर आपने ये भी तस्लीम कर लिया कि जनाब अगर कोई 35 हदीस कोई पढ़ के सुना दे तो आप उस कादियानी को भी मुसलमान समझने शुरू कर देंगे। ये कहाँ से आपने ये जनाब डिबेट के असूल सीखे हैं? ऊपर से आप जनाब जो आपने नारा इस्तेमाल किया है वो तो मिर्ज़ा जूनियर मंगोल छोकरा जो कायनात का बदतरीन काफिर है उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वो कहता है जनाब के कादियानी जो हैं वो जनाब वो उनके जनाब अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे और जनाब उनका तर्जमा भी बिल्कुल ठीक है, और मैं सिर्फ उनको इसलिए मुसलमान समझता हूँ, काफिर कहता हूँ, क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं। अच्छा जोंग साहब, मुझे ये बताएं, अगर कोई कादियानी आपसे कहे कि मैं आपको मुसलमान तस्लीम करता हूँ, आप भी मुझे मुसलमान तस्लीम कर लें, जो कि आपने कर भी लिया है, तो फिर पीछे लड़ाई क्या रह गई है? कोई लड़ाई नहीं है यार, आप भाई हैं हमारे। भाई हैं कादियानी, आपके भाई हैं? हाँ, अच्छा, नहीं अकीदत ठीक हो जाएंगे तो फिर वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कीदे की डेफिनेशन पूछी, वो भी आपको कख नहीं पता।
आपकी उम्र कितनी है? है मिर्जा जी, उम्र कितनी ਤੁਹਾਡੀ? ओरल सेक्स इंजॉय किया कभी? ना करें अपना लोधी भाई, इस ब्राड पे ना करें, ये फैमिली ब्राड देखे चलाते हैं। कैसी गलत बातें। ये मिर्जा जूनियर के वो छोकरे हैं जिनको कख भी नहीं आता और जाके ब्राडों के ऊपर बैठ के मुसलमानों की ना कटवा रहे होते हैं। अब देखे ना, चला गया। कादियानियों को मुसलमान भी तस्लीम कर गया, कादियानियों के तर्जमे को भी सही मान गया, पीछे रह गया जी। उनके जाए वजू भी चमकाई जा रहा है। नहीं, ये 35 हदीस से इसने क्या साबित किया? मुझे कसम अल्लाह की मेरा सर दुख रहा है, मुझे नहीं समझ आई। आपको आइए तो मेरी जरा वो कर दें, उसको क्या कहते हैं, जहाँ लोग इकट्ठे हो गए हैं मर्दई। अकीदे पे कोई नहीं, अकीदे का पूछा अकीदा क्या होता है वो भी नहीं पता। अल्लाह तबारक ताला के बारे में जो नजरिया है वो जी बैठा हुआ है जी, नाउज़ बिल्ला। शर्म मगर तुमको नहीं आती मंगोल मर्दी हो। इनकी नज़र में डिबेटर पता है कौन है उस्ताद जी? इनकी नज़र में डिबेटर वो है जो 1000 बंदों में बैठ के मुझे बात करे, किधर से उस्ताद जी बना दिए, जिसके फॉलोअर ज्यादा हो, कर लो जी। जिसके फॉलोअर ज्यादा हो वो बहुत अच्छा डिबेटर है जी। हैं? लोधी को 40 बंदे सुनते हैं, यहाँ पे बैठे लोगों को 30 बंदे सुनते हैं, फैजी भाई को 50 बंदे सुनते हैं। फैजी भाई छोटे डिबेटर है, कादियानियों के 1000 फॉलोअर बैठे होते हैं, इसलिए वो बड़े डिबेटर। खान भाई ने मना किया बूस्टर लगाने से क्योंकि मुफ्ती साहब म्यार देखो इन्हां दा। हम तो लगाने लगे थे बूस्टर, हम तो 1000 बंदा लाने लगे थे यहाँ पे। ये तो खान भाई ने मना किया कि मुफ्ती साहब चले गए थे। तो नहीं जरूर, ये सारा ड्रामा है जी, सबको पता है। बिल्कुल ऐसे ही 1000 फॉलोअर 2000 फॉलोअर लेना कोई काम है? इनकी नासाब आइडिया 3 तो यार ये तो बहुत सस्ते हैं, ये तो $22 में मिलते हैं। अभी हम ये अननोन भाई लगाने लगे थे, मैं ड्राइव कर रहा था, वो मुफ्ती साहब चले गए। कसम अल्लाह की ये तो बड़ा आसान काम है यार। अस्तगफिरुल्लाह, ये दफा कर। फैजी भाई आए हैं। फैजी भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे पीछे काम का रौला मैं सुन रहा हूँ, इंशाल्लाह। ओके ओके। ये इनकी हरकतें तो देखे, मेरे नबी से तो कोई है ही नहीं, मिर्जा गुलाम कादियानी शेख कोई लो। बट ये डिबेट हो गई, ओवर टू यू। आपने भी लाला जी उसको बड़ा सोफा दिया हुआ है बैठने के लिए, वो एंजॉय कर रहा है। तो भाਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ स्ट्राइक ही मार सकता क्या 1000 बंदा तेरे को है कोई नहीं, लिहाजा मेरे लो रिपोर्ट ही। नहीं, वो बहुत बड़े सोफे पे तो हमारे नाइट राइडर भाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे डिबेटर है। हमारे पास तो सारे खैर के साथ अच्छे लोग बैठते हैं, डिबेटर है तकड़े, साहिल भाई, अली भाई, फैजी भाई, मुफ्ती साहब आ जाते हैं। बाकी यार अभी इनसे अब क्या बात, कसम अल्लाह की परेशान हो जाते हैं यार। ये देखें, ये क्या हरकत है। तमाम पैनलिस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवैस भाई कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी खामोशी क्यों चाहिए हुई है पैनल पे? यार आज बहुत शिकार किया है, सारे थक गए हैं सीरियसली। यार मुजाहिदीन भी थकते हैं वैसे, पहली बार सुना है मैंने। नहीं थकते तो कोई भी नहीं है, लेकिन बहरहाल बस वो आज मुझे लग रहा है, पता क्या है, मुझे लग रहा है जैसे
ریڈر بھائی ہیں, فیضی بھائی ہیں, علی بھائی ہیں, ساحل بھائی, پیچھے فاروق بھائی بیٹھا, سب شکار کے چکر میں. کوئی بندہ نظر آئے تو اس کے اوپر جھڑپ پڑے اس کو اور کھینچ ہاں کے یہ سونے کی ایکٹنگ بھی کرتے ہیں. یہ بات آپ کی قابل غور ہے کہ کوئی اوپر سے سمجھے کہ کوئی سوئے ہوئے ہے, غلطی سے چڑھ آئے اوپر تو بس پھر سارے حاضر دلائے. اس بھائی اور کیا نہیں تازی ہے؟ بس یار الحمدللہ مالک کا بڑا احسان ہے. اسمو احمد لے بیٹھے انہیں بھائی الحمدللہ. کوئی لاسٹ 3-4 ڈیز کے اندر کوئی 3 بہت بڑے ان کے پلر گر گئے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ سب سے بڑی تو خوشی کی بات یہ ہے. اور بہت بڑے پلرز ہیں ان لوگوں کے نا, وہ ایک تو بہت بڑا ہے. پتہ ہے آپ نے بہت, اللہ نے آپ کو اس کا سبب بنایا بھائی, بہت اللہ نے. آپ دیکھیں یہ آپ سے اللہ نے بہت زبردست کام لیے ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی بخشش کا بہت زبردست ذریعہ بھی بنے گا انشاءاللہ. کتنے لوگ یہاں عرصوں سے کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھیں ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے آپ کا کام کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. آپ نے ایک دم جو ہے تو بہت بڑے بڑے ان کے نام گرائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کام لیتا ہے اور بس اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دے کے کام بندہ. نہیں میرا اس میں دیکھیں, میرا تو اس میں 1% بھی کوئی کمال نہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی بھی رد قادیانیت کے اوپر تو میں نے کبھی کام کیا ہی نہیں. آپ کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے. تو مجھے تو خود نہیں سمجھ آئی. میں تو خود اس چیز کو آج تک ابھی تک نہیں سمجھ پا رہا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کام. تو محنت تو یہ اسمو احمد پہ بلکہ سب لوگوں کی محنت ہے. نائٹ رائڈر بھائی بھی اس دن روڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بھی یاد ہوگا. محنت تو ان سب لوگوں کی ہے. میرا تو اس میں کوئی 1% کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نہیں آپ کی بڑی محنت ہے جی, آپ کی بڑی محنت ہے. آپ بندے رہے ہیں ان کے ساتھ اور آپ نے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بالکل بڑا زبردست کردار آپ نے ادا کیا. شاہ جی وہ مار گیا ان کو, وہ عین محمد کہنا جو ہے نا, یقین کریں ہلا گیا ان کو, وہ ہلا گئے. اور بیچارے ان لوگوں کو نہیں پتا, نائٹ رائڈر بھائی ان لوگوں کو یہ معصوم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ معصوم ہے, ان بیچاروں کو نہیں پتا ہے. صحیح بات ہے. میں ایک جو سنڈے والے دن جس بندے کی کال آئی نا مجھے, اس کا نام میں ذری باتیں نہیں لے سکتا یار. نائٹ رائڈر بھائی 7-8 منٹ روتا رہا یار, وہ بندہ روتا رہا کہ یار میں نے کہاں زندگی گزار دی. اور میں اسے مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو چپ کر پاؤں یا اس کو کیا کہوں, مجھے خود بھی پتا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار اب جو ہونا بھائی وہ تو ہو گیا, اب تو آگے اپنے اب آگے دیکھو. تو کہہ رہا ہے اس نے کیوں. میں نے کہا یار مجھے کیا پتا بھائی اس نے کیا کیا کیوں کیا, مجھے تم کیوں پوچھ رہے ہو. میں نے کہا یار میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں آگے جو چیزیں ہیں اس کو اب سیدھا اپنے نسلوں کی حفاظت کریں. اب ایگزیکٹلی نہیں, وہ اپنے پیرنٹس کی وجہ سے نا کافی پریشان تھا. تو میں نے کہا یار کہ دیکھو یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے, اللہ کے معاملات ہیں, میں تو اس میں تمہیں کیا گائیڈ کروں. تم کوشش کرو ان کو دو. نہیں کوشش کریں. لیکن وہ اسمو احمد جو ہے نا, ان کو یقین کریں وہ جو ناصر نے کام کیے ان کی کمر توڑوا گیا. وہ ابھی اور بھی نائٹ رائڈر بھائی انشاءاللہ مالک نے چاہا نا انشاءاللہ 2-3 لوگ اور ہیں, تو وہ بھی بڑی امید ہے اللہ کے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت انشاءاللہ. بڑی بات ہے جی اگر کسی کے دل میں یہ چیزیں اتر آئیں اور اللہ اور رسول کا کلام اتر آئے تو اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے جائے حق کی طرف. ورنہ کئی ایسے بھی ہیں جو بہت آگے جا چکے ہیں, سننا ہی نہیں چاہتے. آپ دیکھیں نا کہ میں رات کا ٹائم تھا اور 2:54 پہ مجھے میسج آیا, ویری ارجنٹ کال. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا یار رات کے ٹائم. تو میں نے کہا یار یہ دیکھیں, لیکن یہ بار اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے فضل ہے. اچھا میں ایک بات نائٹر بھائی مزے کی بات یہ ہے, مجھے کہتے کہ شہادت کا کلمہ پڑھاؤ. اب مجھے پتہ ہی یار اتنا میں وہ تھا ایکسائٹیڈ کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میں نے کلمہ کیا پڑھانا ہے. پتہ آپ کو یہ بات, اور میں سوچنے میں مجبور, میں نے کہا یار آپ کسی نا
شاہ جی کو بولے یا کسی اور کو بولے, مطلب میں نہیں ہوں اس قابل ابھی, تو میں تو اپنا کو نہیں سمجھتا. لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی دوسرا کلمہ پڑھو. بہرحال ہو چکے, انہوں نے کہا کہ نام نہیں لینا, بہت سے معاملات ہیں. ہاں ٹھیک ہے. نہیں انہوں نے پھر برات بھی کی مرزا صاحب. میں کہتا ہوں میں نے کہا انہیں کہ یار میں نے یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں ہمارا مرزا صاحب سے کوئی پرسنل تو لڑائی ہے نہیں, کوئی جنگ نہیں ہے. مرزا صاحب نے میرا کیا, میں نے کہا مرزا صاحب نے میرا کیا بگاڑا. وہ کہتا ہے یار تمہارا نہیں بگاڑا, آخرت بگاڑ دی لوگوں کی, تم کیا کہہ رہے ہو کچھ نہیں بگاڑا. میں نے کہا لوگوں کی آخرت بگاڑی ہے. نیڈر بھائی انہوں نے مجھے ایک ورڈ کہے ہیں, لفظ ایک کہے انہوں نے. جب لوگ اکٹھے کانفرنس پہ تھے نا, تو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں اس جرنی میں, اگر زندگی سے تندرستی دے اللہ ان کو, اگر مر گئے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ کے گھر جا کے تم نے ہمارے گواہ رہنا. تو بات ہی یار یہ میری بہت بڑی بات تھی. تو میں اور مطلب کیا کہہ سکتا ہوں, بہت بڑی بات. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ براڈوں پر یہ بڑا چمک رہے ہیں, لیکن یہ براڈوں پر الحمدللہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. جب سے میں آیا ہوں 6-7 مہینے ہو گئے ہیں, ماشاءاللہ 15 سے 20 لوگ تو میں دیکھ چکا ہوں, اور صرف ایک بندہ میں نے دیکھا ہے جو وہ بھی کسی ضرورت کی, کسی لالچ کے پیچھے ہوا ہے, وہ نوید. پتہ نہیں وہ پہلے سے ہی تھا یا کیا چکر تھا, نوید شاہ. نہیں نائٹ رائڈر بھائی وہ پہلے سے قادیانی تھا, پہلے سے لالچ والا یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر نہیں بھی تھا تو وہ ایک ہی نظر آیا ابھی سے 6-7 مہینے میں. اور ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے نا ہمارے سامنے وہ کلمے پڑھے ہیں انہوں نے. اور کئی تو اندر کھاتے ہیں نا, کہ جو سامنے ہی نہیں ہے. اگر جو شخص جی اویس بھائی کریں آپ. دیکھیے نائٹر بھائی سمجھتا ہوں. اچھا آپ بولیں خان بھائی, آپ بولیں. سوری میں نے میوٹ لگتا ہے. نائٹر بھائی یہ بات ایک یاد رکھیں کہ عشق مصطفیٰ, عشق رسول تو ہونا ایک بہت اچھی بات ہے, اس کے بغیر تو نجات ہے ہی, لیکن مقام مصطفیٰ کا پتہ ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. جب تک آپ کو مقام مصطفیٰ پتہ نہیں ہے نا, تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے. کیسے ان کے منصب کو کوئی ہاتھ لگائے گا, کیسے کوئی ان کے منصب کے پاس آئے گا. تو یہ جو مقام مصطفیٰ ہے نا, یہ بہت, اس کو سمجھنا مطلب ہر بندے کے بس کی بات بھی نہیں ہے. جس کو یہ سمجھ لگ جائے تو سمجھے بس کہ وہ پھر سپر ڈوپر انسان ہے. دیکھیں نا بڑی بات کی آپ نے. دیکھیں اس شخص نے کیا ہے, وہ کہتا میں نبی ہوں, جھوٹ بول رہا نا, اور اس کو بھی پتا تھا کہ دنیا کو پتا میں جھوٹا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا جادو چل گیا. چلو کچھ لوگ تھے شریف, اس ٹائم سادگی تھی, سادہ لوگ تھے. اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ امام مہدی کہہ کے اس نے پہلے لوگوں کو اس نے جو ہے وہ جھانسا دیا. بعد میں اس نے نبوت کا ازالہ, وہ ایک غلطی کا ازالہ میں کیا ہے, لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, نہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو تو یہی پتہ تھا کہ نہیں وہ امام مہدی ہے جی, ٹھیک ہے. سادہ لوگ تھے. اب اس نے جو بعد میں یہ جو ظلم اس نے کیا کرنا شروع, وہ یہی کر لیتا, بعد میں کہتا جی مجھے الہام ہوا ہے, مجھے اللہ نے نبی بنا دیا, ٹھیک ہے جی, بات ختم تھی. اس بندے نے جو بہت مطلب ہے کہ جو بڑی جرت کا کام کر گیا, وہ اپنی مطلب ایک بڑی جرت کر گیا, یا جرت کا لفظ نہیں بولنا چاہیے, یا جو اس نے دجل کیا یہی کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینا کی کوشش کی اس نے, عیسیٰ علیہ السلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لینے کی کوشش کی. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آنا ہے, اس نے کہا جی میں ہوں, اور عین محمد اور احمد میں ہوں. یعنی دونوں انبیاء کی علیہم السلام الصلوۃ والسلام کے دونوں انبیاء کی جگہ لینے کی اس نے کوشش کی ہے. یہ نہیں نظر آ رہا کسی کو. تو جو یہ سمجھ جائے نا کہ یار وہ کس حیثیت سے وہ کہتا ہے میں عین محمد ہوں, میرے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, نعوذ باللہ,
यार तुम इस काबिल हो, कोई भी जिस्म इस काबिल है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कोई भी जिस्म मखलूक में से जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, मेरे अंदर आ गए हैं, मैं उनका बुरूज बन गया हूँ, मैं उनका जिल हूँ, वो मेरे अंदर आ गए हैं, बस मोहम्मद की चीज मोहम्मद को मिल गई। ये क्या उसने खेल खेला है, यही समझ आ जाए ना लोगों को, तो लोग वैसे ही जो है ना 4 लफ्ज बोले और कहें जी, 4 हरफ बोले और कहें जी जान छोड़। नहीं ट्रेडर भाई, ये मिर्जा साहब का पुराना वतीरा है, बहुत पुराना। ये मिर्जा साहब ने जब पहला इनका जलसा सालाना हुआ ना, तो ये इन्होंने ऐसी हरकत की कि इसको, या ये सिस्टर आप जरा माइक नोट कर ले शुरू। तो इन्होंने यही काम किया कि अपना एक बंदे को कहा, उसका हवाला है या भाई रोज पढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। गलत बरात पे आ गया। अच्छा, तो वो उसने जी नटरेटर भाई, वो उसने मशहूर एक मौलवी था, अन्ना मौलवी उसका हवाले का नाम है। उसने ये हरकत की, उसने कहा मैं लोगों को ऐसे लाऊंगा और मैं मौलवी बन के आप लोगों से मुनाजरा करूंगा, पहले मैं दलाइल दूंगा, फिर मैं हारने लगूंगा और लोगों के सामने। तो वो साथ के गांव चला गया जलसा सलाने के बाद इनकी। तो जब साथ वाले गाँव चला गया तो उसने ये हरकत की कि उधर उसने कहा कि मैंने सुना है इस आप लोगों के इलाके में कादियानी रहते हैं। तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ यार है। तो उसने कहा यार वो जहाँ असर को मजमा लगता है ना, जहाँ सारे वो लोग दरख्त के नीचे बैठते हैं, तो उधर आ जाए सारे। तो उसने सारों को इकट्ठा किया, तो उधर पहले ऐसे दलाइल देता रहा, फिर एकदम जब उनसे मुरब्बी भी इसने अपनी मर्जी के उधर लाए हुए थे, तो जब वो उधर उनसे दलाइल से शिकस्त खुर्दा हो गया, तो मुसलमानों ने पकड़ के उसको मारना शुरू कर। जब उसने मारा तो कहते हैं इन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे आ जाना और या पहले हमसे मुनाजरा करना और फिर हारते जाना, और इससे लोग समझेंगे कि इनके पास बड़े दलाइल है। तो बहरहाल अवैस भाई, ये इतनी लंबी स्टोरी मैंने इसलिए बताई, ये जया भाई से आप हवाला ले लें इसका, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। बात ये है कि ये जो नादिर की बरात पे रोज 6 बैतें हो जाती हैं, रोज जी ये फलानी ये फलाना अहमदी था और ये मुसलमान तौर के अहमदी हो गई, ये सब झूठ है, सब दजल है। उस दिन मैंने आपको वीडियो सुनाई ना, वो 20 करोड़ वाली, हाँ हम बहुत ज्यादा हैं, 20 करोड़ हैं, कहते हैं वो हाथ भी ऐसे कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे क्या हाल है सब भाई, ठीक है ना? अच्छा नाइट डायरेक्टर भाई, ये मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे उस वक्त जब ये मिर्ज़ा कादियानी ज़िंदा थे, तो जो लोग उनके ऊपर ईमान लेके आए थे, या तो उनके पास तालीम नहीं थी, इल्म नहीं था, तो उनको सिर्फ इस बात का पता था कि हदीस और कुरान बता रहा है कि हज़रत मरी अलैहिस्सलाम आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो उनकी बातों में आके तो वो ईमान ले आए हैं। तो उनके मामलात में मेरे ख्याल में तो अल्लाह ताला हो सकता है रायत करें कि उनको इल्म नहीं था, लेकिन उनको ये पता था कि वो आएंगे। तो जो आगे इनकी नस्लें आ रही हैं, जो मिडल वाले लोग थे वो तो गुमराह हो गए हैं, लेकिन जो इनकी आगे नस्लें आ रही हैं इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक वो लोग मतलब समझ रहे हैं कि इन्होंने हमारे बाप दादा के साथ बहुत मतलब गलत किया है, नहीं करना चाहिए था, जो लोग समझ रहे हैं। तो ये बात आप प्लीज़ एक बार ये कहें, और दूसरे नंबर पे वो एक बात है वो मैं दूसरी दफ़ा बोलूँगी। जी सिस्टर, बात यह है कि अल्लाह ताला उनके मामलात जाने, क्योंकि अगर किसी ने सिर्फ इमाम महदी के तौर पर उनके दजल का किया तो आपकी बात जो है वो मुनासिब है कि उन्होंने नबी तो नहीं उसको माना, तो जिसने उसके ऊपर उसको सिर्फ मुजद्दिद या मुहद्दिस मानकर और इमाम महदी मानकर उसने वो लेकर आया, वो सादा लोग थे, उनको हदीस का भी नहीं पता था, इमाम महदी की निशानियों का नहीं पता था। अभी भी आज भी आप उठा लेना लोगों को जो अब रद्द कादियानियत कर रहे हैं या जो इधर
براڈس پر آتے ہیں، نالج لیتے ہیں، ان کو آج پتہ ہوگا امام مہدی کی نشانیاں کیا ہیں، وہ کیسے آئیں گے، وہ کیا کریں گے۔ عام مسلمانوں کو انفارچونیٹلی پتہ ہی نہیں ہے، بس یہ پتہ ہے امام مہدی نے آنا ہے اور یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو اس لیے وہ وقت بھی ایسا تھا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، لیکن چونکہ نبی نہیں انہوں نے مانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں۔ اور باقی جو آنے والی ان کی نسلیں ہیں جو آج کے دور میں ہیں، ان میں بھی کئی لوگوں کو یہی پتا ہے کہ وہ امام مہدی ہے، وہ تھا، اس کا دعویٰ نبوت کا تھا ہی نہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور جو کٹر ہو چکے ہیں، اور خاص طور پر جو مربی، اور خاص طور پر جو پیسہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں ساتھ، اور کسی لالچ کے لیے جڑے ہوئے ہیں، وہ تو ظاہر ہے پھر ان کا معاملات اور ہیں نا۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ پہ، بے شک وہ اس کو دنیا کے سامنے نبی مان رہے ہیں، رات دن کر رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے ہم جھوٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں۔ اکثر مربی ان کے جانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، لیکن پیسوں کے لیے، لالچ، دنیا کے لالچ کے لیے وہ جو ہے نا وہ اعتراف نہیں کر رہے۔ یہ معاملات بھی بہت ہیں نا لوگوں کے ساتھ۔ جی جی بالکل، بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے۔ اچھا، وہ جو ایک طاہر خان ہے ان کا، ابھی اس کی ایج بھی دیکھیں تو پتہ نہیں ہوتا ہے، ہم کیا پتہ ان سے پہلے چلے جائیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ینگ بندہ جو ادھر ہی رہ جاتا ہے اور بوڑھا بندہ چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ وہ تو خود گمراہ ہیں، لیکن وہ ساتھ یہ اس مرزا صاحب کی جا کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ اس طرف آئیں، اس طرف آئیں، اور ان کو بھی وہ ساتھ اپنی جہنم کی آگ میں وہ بندہ دکھیل رہا ہے۔ یہ اچھی بات تو نہیں ہے، اس کو خود سمجھنا چاہیے پہلے کہ میں کس کو نہیں سسٹر، وہ ان کو ٹاسک دیے ہوئے ہیں، اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے، وہ بندے نہیں لے کر آئیں گے، ان کی جو ہے وہ روزی روٹی جاتی ہے نا، ان کی جاب جاتی ہے، آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ نقصان میں ہے نا۔ ہاں وہ تو کر چکے ہیں نا۔ آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، تم نے دنیا کے بدل، آخرت کے بدلے تم نے دنیا خرید لی ہے، اور میری آیات کو تم مت بیچو چھوٹے سے، لا تشترو بھی آیاتی ثمنا قلیلا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسے لوگ ہیں انفارچونیٹلی، انہوں نے دنیا کو پسند کر لیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ خان بھائی دیکھیے گا، میں ذرا 15 منٹ کے لیے بزی ہونے لگا ہوں، سسٹر کا کوئی سوال ہو تو آپ دیکھیے گا۔ جی سسٹر، بھائی نہیں جی سمیر بھائی، السلام وعلیکم السلام۔ آپ نے تمہیں کتنی تعریف کر دی ٹرکوں کی، میرا تو دل تھا یہاں سے یورپ سے ابھی ٹکٹ دوں اور چلا جاؤں ادھر ہی۔ یہ آج انہوں نے ٹرکوں والا بزنس الگ سے کھول دیا تھا۔ کیوں آ کے آپ نے پھر دوبارہ یاد کرا دیا ہے یہ بات؟ باجی آج آدھے سے زیادہ براڈ تو ٹرکوں سب سے آج تو میں قائل ہو گیا تھا، اور اپنی یہ بس کی جاب چھوڑ کے سوچ رہا تھا کہ وہاں چلا جاؤں۔ ماما یہ تو ان کے ڈور سوال جو انسان جدھر ہے اپنے رزق پہ صبر شکر اللہ کا ادا کرے۔ نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے جی، اللہ کا احسان ہے۔ وہ لوگ کم ہی ہیں بالکل خان بھائی، وہ یہ دیکھتے ہیں دوسرا مجھ سے آگے تو میں اس سے بھی آگے ہو جاؤں، لیکن جو اللہ کرتے ہیں وہ بہتر نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، ٹرک کی جاب بہت ٹف ہے، میں نے تو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کی، لائسنس میرے پاس ہے ادھر، لیکن یہ بس کی جاب ٹھیک ہے، 8 گھنٹے نوکری ہے، جہاں خراب ہو جائے وہاں فون کر دو، وہ آ کے لے جاتے ہیں اور ہم فارغ ہیں، اللہ خیر صلی اللہ، یا دوسری لے آتے ہیں۔
तो इसलिए ट्रक भी जिधर खराब हो जाए मैं कंधे पे नहीं उठा के लेके जाना पड़ता, आके ले जाता हूँ, लेकिन पैसे बहुत ले लेते। आपकी तो कंपनी है ना, तो आपकी तो सरदर्दी है ना, आपने तो उसके साथ बिजी रहना ना। मैं तो जॉब की बात कर रहा हूँ, कंपनी की तो माशाल्लाह वो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मेरी कंपनी नहीं है, मुझे इधर टिकटॉक पे मालिक ना बना दो खुदा का खौफ का। सॉरी मादरत, वो फिर मेरा ख्याल है नाइट राइडर भाई कह रहे थे उनकी कंपनी है शायद, मुआवजा लग गया। हमारे मेरे नाना बू की कंपनी थी, वो 2019 में वो फोत हो गए। अब मेरे मामू उसकी टेक किया करते, जब भी हमारा थोड़ा बहुत है इसमें शेयर है, तो थोड़ा सा माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला और आसानी करे। अनंत भाई सो गए? कल से मैं बराड़ नहीं लगाऊंगा भाई, आप लोग तो सोने के लिए इधर आ जाते हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। अच्छा फिर कितना? हाँ नहीं, वो ना चेन्स उतारनी थी, लेकिन ना सड़क जो है ना वो स्लिकी है, बर्फ जो है ना वो ब्लैक आइस हुई है, तो वो मैंने उतर के देखा है, तो मैंने कहा यहाँ चेन उतार देता हूँ, लेकिन ना अभी डेंजरस है मामला। मैंने कहा फिर आगे जाते हैं जहाँ थोड़ा सा सेफ्टी हो जाए मजीद। एक आधी रहने दे, बाकी उतार दे। हाँ नहीं, थोड़ी कर ली है मैंने। जब तक आप जा रहे हैं हम बैठे हैं। आपको तो घर पहुंचाना है। हाँ नहीं, आगे एक दो हिल हैं, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, ये ना हो के हिल ना चढ़े फिर। आज ऐसे मजा बहुत आया, शिकार वाह वाह किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने चेना पाई जाते जो कैलिफोर्निया निकल दे? नहीं, बड़ा बहुत दूर तक आया हुआ है स्टॉर्म। लास्ट नाइट वो दूसरे दोस्त सारे स्टक हो गए थे, वीडियो पता निकले कि नहीं, मैं तो सो गया था। हाँ या वो मेरा ख्याल है ओरेगन जाने वाले ठीक है, इधर कैलिफोर्निया हाल खराब है जी। कैलिफोर्निया में थे रहील भाई तो निकल गया था लास्ट नाइट ना, वो तो कल सुबह निकल गया। अर्ली निकल गया था, अर्ली निकल गया था। बाद में जितने भी दोस्त गए थे ना, लाइक 3 to 4 PM वाले, वो वीड में काफी सारे फंस गए। वो कैलिफोर्निया बॉर्डर में ही वो वीड रेस्ट एरिया में फंसे हुए हैं। हाँ उधर बहुत बैड था, बड़े एक्सीडेंट हुए लास्ट नाइट उधर ना। दोस्त वीडियो भेज रहे थे। वो ट्रक स्लिप हुए ना 2। अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास भी कल उधर का ऑर्गन का लोड था, मैंने कैंसिल करके लास वेगास ले लिया। ओह अच्छा नहीं, आप ठीक रह गए जी। मैं तो अगर यूएस रहता तो टेक्सास रहता यार, उधर मौसम अच्छा होता है, और तो मैं किसी स्टेट के नजदीक भी नहीं। अब आपको गर्मी पसंद आनी है ना, क्योंकि आप तो भाई 50 में बैठे हुए हैं, तो आपको तो लगेगा जैसे गर्मी जो है ना वो, तो आपको मिस करते होंगे गर्म मौसम को ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सबके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप किधर फंसे हुए नाइट राइडर भाई? बस ये मुझे तकरीबन 16-17 घंटे हो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि 300 मील मुश्किल से किया, 300 मील भी नहीं किया। क्या स्नो है? स्नो स्टॉर्म है? स्नो। वहाँ आगे एक्सीडेंट हो गए थे, तो उन्होंने दूसरी साइड भी बंद कर दी थी। हालांकि हमारी तरफ एक्सीडेंट नहीं था, बट वो क्या करते हैं कि साउथ बाउंड में, नॉर्थ बाउंड में था एक्सीडेंट, तो साउथ बाउंड भी उन्होंने बंद कर दी,
एहतियातन वो करते हैं कि ये ना हो कि इधर भी एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर लंबा काम चल पड़ता ना उनको। तो वो अपनी आपको इजी करने के लिए वो रोड ही बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर साफ सुफ करने के बाद फिर कहते हैं जी चलो जी चेने डालो और निकलो। नहीं तो जो बीच में अगर रोड के कोई बंदा वो निकाल देते हैं ना ट्रैफिक जो पीछे हो, नहीं ट्रैफिक तो बहुत दूर तक स्टक हो जाती है ना फिर। तो फिर वो क्या क्या करते हैं? वो लोग उधर बीच में ही रहते हैं या क्या निकलते बीच में रहते हैं, बीच में। अब 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे वहाँ रोड पे खड़े रहे हैं, तकरीबन हाँ 6 घंटे रोड पे खड़े रहे हैं। या अभी आप पूरा भीड़ में होता हो है। भाई? मैं अभी ये डंसमीर आ गया हूँ। अच्छा, फिर तो ऑलमोस्ट डन हो, तो फिर तो अल्लाह खैर करे। हाँ डन हो गया। स्लिपरी है, ब्लैक आइस हुई है। जी जी जी, ऑल द वे रेडिंग तक है, शास्ता लेक तक आ गया था लास्ट नाइट ना। अच्छा हाँ। फ्रीजिंग जो है ना वो लास्ट एलजी क्या बोलते हैं 689 तक आ गया था लास्ट ओ नाइट। अच्छा, मैं तो सोच रहा था ये शायद स्केल के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन लग रहा नहीं होगा। नहीं नहीं, स्केल के बाद तकरीबन 10 से 12 मील जाना पड़ेगा। लेक हेड तक तो था, क्योंकि लास्ट नाइट वो एक दोस्त था वो लेक हेड तक पहुंचा हुआ था, बोल रहा था। लास्ट टाइम जो ओरिगन में आया था ना, वो ओरिगन वाशिंगटन सारा कवर किया था, वो बहुत बैड था। मैंने अपनी लाइफ में इतने ट्रकों का एक्सीडेंट नहीं देखा था जी। मेरा ख्याल है 15 से 20 से 25 ट्रक मैंने देखे थे उल्टे हुए ना। नहीं, लास्ट नाइट भी बहुत थे, इसीलिए आप स्टक हो ना, क्योंकि 4 बजे 3-4 तो हो गए थे ना, उधर दोस्त खड़े स्टक थे ना, वो बोल रहे थे एक माइल में 4 ट्रक नीचे उतरे हुए हैं। या। इधर वीड एरिया में, अफ्रीका एरिया में, सारा इधर था। बुरा होता है जो गाड़ियां फंस जाती हैं ना, गाड़ियां बीच में फंस जाती हैं, उनमें लेडीज होती हैं, बच्चे होते हैं। पिछली दफा मैं उधर वहां फंसा था तो 8-9 घंटे गाड़ी के अंदर, मतलब 1 इंच भी नहीं फंस गई थी ना, ये राइस हिल के बाद 1 इंच भी हम मूव नहीं हुए थे 8 घंटे। तो वो बेचारी औरतें बैठी हुई हैं बीच में, बच्चे बैठे हुए हैं, फिर खाना पीना। फिर लोगों से मैंने पूछा जो मेरे सामने था कि पानी चाहिए, कोई खाने के लिए चीज चाहिए, कुछ चाहिए ले लो। तो फिर ये है कि बेचारों का हाल बुरा हो जाता है, पानी भी नहीं होता ना इनके पास मोस्टली। नहीं कादरी साहब, जो फरवरी का जो होता है ना स्टॉर्म, मैं तकरीबन 2012 से ट्रक चला रहा हूँ ना, जो फरवरी का स्टॉर्म है इतना बड़ा ही आता है हर साल, पता नहीं अल्लाह की कुदरत है। मोस्टली सबसे बड़ा फरवरी में आता है, मिडल में मोस्टली ये है ना, बैड होता है फरवरी। हाँ जी, ये रेडिंग तक आ जाता है। या फरवरी बैड होता है। जनवरी बिल्कुल ठीक गया, लास्ट मंथ जो था इधर बिल्कुल सही था, लेकिन चलो अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह ताला खैरियत रखे। ये खान भाई आप तो -50 में फिर रहे हैं, पता नहीं कैसे चलाते होंगे। मैं तो -50 है मेरा, अभी भी रोड की हालत। ये हमारे इधर लोग कहते हैं इधर ट्रक नहीं, इधर लोग किश्ती चलाते हैं, इसको किश्ती कहते हैं। ये अपनी मर्जी से रुकता है, अपनी मर्जी से चलता है। ले जी, पुलिस जो है ना वो लाइटें लगा के आगे गई है, पता नहीं आगे कोई पंगा ना पड़ गया हो। अल्लाह खैर करे। भाई स्केल जिधर जो जगह मिले रोक दो, क्या जरूरत है जाने की। अभी तो डन हो गए, अभी तो 10 माइल रह गए रेड बाइक के, अभी तो लास्ट डन है। करीब पहुंच गया हूँ, आगे ट्रक स्टॉप पर रुकूंगा ना, यहाँ तो फिर बेबान जंगल है, यहाँ कहाँ रुकेंगे। हमारे कनाडा में ये सूल है कि जरा सा फील्ड हो तो उसी वक्त जिधर भी हो रुक जाते हैं। हाँ, हाईवेज हमारी इतनी बिजी नहीं होती ना, उधर लोग बहुत है ना इधर, बल्कि बिजी क्या इधर तो 3 घंटे बाद कोई गाड़ी गुजरती। अच्छा नहीं, यहाँ मोस्टली आज जैसे अब मौसम खराब है ना, तो वो रुकने भी नहीं देते, कहते हैं निकलो। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, मतलब हर 4.5 घंटे के बाद 45 मिनट की ब्रेक जरूरी है या ऐसे मौसम? नहीं, हमारे 8 घंटे बाद, 8 घंटे में 8 आवर्स में।
ہمارے یہاں تو ادھر یورپ میں تو ایسے ہے نا کہ ہر 4.5 گھنٹے کے بعد آپ نے 45 منٹ کی بریک کرنی ہے، اور اگر نہیں کریں گے جہاں پہ بھی چیکنگ ہو گیا وہ 1 سال تک ڈیٹا ہوتا ہے کارڈ میں، تو دونوں کو کمپنی کو بھی اور ڈرائیور کو بھی دونوں کو 8-10 ہزار نہیں بھائی یہاں تو وہ کہتے ہیں بس ڈرائیور جو ہے نا وہ انسان نہیں ہے، بھگائے پہنچائے اتارے ڈیلیور کرے. یہاں تو بس جو ہے نا وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے پہلے یہ تھا 8 گھنٹے میں آپ نے ½ این آور کی بریک کرنی ہے ود ان 8 آورس، اور وہ آف ڈیوٹی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو کمپنیوں کو اس پر بھی مسئلے ہو گئے تھے. اب انہوں نے کیا کیا ہے 8 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ½ این آور کی جو بریک کرنی ہے. اگر آپ نے تیل ڈالنا ہے اور تیل میں آپ کے 20 منٹ ہو گئے ہیں تو اوپر 10 منٹ کریں، وہ جو تیل والا ٹائم ہے وہ آپ کی بریک ہے، وہ بریک میں شامل ہو جائے گا. بہت زیادتی ہے، بہرحال یہ تو واقعی بہت زیادتی ہے. ادھر تو کہتے ہیں جی بس بھاگے رکھے ڈرائیور. یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں ایسے کہ آپ نے ایک دن میں 11 گھنٹے سے زیادہ آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. اگر آپ 11 گھنٹے گاڑی چلا لی ہے تو بس اس کے بعد آپ نے ہے ہم یہاں بھی 11 گھنٹے ہی ہیں. اچھا صحیح. ہاں بس اتنا پھر فرق ہے، یہاں وہ ہر 4.5 گھنٹے کے بعد بھی ایک 45 منٹ کی بریک کرنی ہے. اچھا نہیں ادھر ½ این آور ہے، 11 گھنٹوں میں ½ این آور ہے. ود ان 8 آورز آپ نے ایک بریک کرنی ہے. اس میں بھی اگر آپ نے تیل ڈالا ہے تو جو ٹائم تیل میں آپ نے آن ڈیوٹی گئے ہیں وہ بھی آپ کی بریک میں شامل ہوگا. اس کے بعد آپ اگلے 3 گھنٹے آرام سے چلائیں پہنچیں. وہ تو کمپنیوں نے ان آفیشیل طریقہ نکال لیا ہوگا نا کہ ڈرائیور کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کو بریک میں کاؤنٹ کرے گا. یا میرا آج مفتی خیال ہے صاحب اب مجھے ماشاءاللہ اس کو رکنا چاہیے. بہت اچھے طریقے سے پکڑا، وہ جو لڑکا آیا تھا چھوٹے جونیئر کا. اچھا وہ پتہ نہیں کیا کر کے گیا، میں تو حیران ہی ہوں. اس بندے پہ تو میں بھی حیران نہ ہوں. وہ اس جو نے 35 منٹ میں تو تھا، مجھے یہاں ایک وہ بیچارہ تھا گورا، اس کو چین ڈالنی نہیں آ رہی تھی تو اس کے لیے پھر میں ہیلپ کر رہا تھا اس ٹائم، میں بول نہیں سکا. تو میں تو یہ حیران ہوں وہ حدیث بھی کا ترجمہ بھی غلط کر کے گیا وہ. ان بیچاروں کو صرف ایک نعرہ اس نے سکھا دیا ہے کہ میرے نبی سے ہے ہی ہاں کوئی نہیں، تیرے بابے شاہ ہی کوئی نہیں. بس وہ سمجھتے ہیں یہی تبلیغ ہے، یہی سب کچھ ہے. اور سارا وہ ترجمہ یہ بھی وہ کہہ غلط گیا کر کہ کے گیا. یہ بھی کہہ گیا نعوذ باللہ ہم تو قادیانیوں کو جو ہے اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور آپ نے ترجمہ ہمارا کر دیا تو بس ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی مسلمان ہی مانتے ہیں. لیں جی میں 1 منٹ 15 منٹ کے لیے آف دیتا ہوں، کریں گپ شپ. ڈاکٹر بھائی بند کر دیتے ہیں، ہم بہت تھک گئے ہیں، کافی دیر ہو گئی، واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے براڈ بند کرنی ہے تو کر لیں. آپ بند کر دیتے ہیں، ابھی کوئی ہے بھی نہیں خاص، چلیں تھک ٹھیک بھی ہے. گیا وہ. سب بھائیوں کو اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم